अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम मिलेंगे कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से टू नो अबाउट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैक्स। सो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और यू आर कंफ्यूज्ड या आपने जस्ट इंडस्ट्री में अभी पहला कदम रखा है या फिर you are an expert working in a software house, this podcast will help you equally और सबके लिए it will be informative. So आज के जो हमारे मेहमान हैं they belong to data engineering field and let's start with their introduction. So let's start with Danial. So Danial. Hi, Assalamu alaikum. So first of all, thank you Aslan Tahim for hosting this show. So my name is Dhanal Shabir and I have a very diverse kind of experience in the data domain. So initially I started as a machine learning engineer at Islamabad, NAS. So I worked at a startup for 2 years. So later uh, I got interested in data engineering aspect of the data. So majority of my experience lies in with the data wrangling, making predictions from data, doing predictive analytics. So now I am working with a US company as a senior solutions engineer, and my day-to-day task is like writing a lot of SQL codes in a data warehouse and querying custom reports for customers, managing data architecture and that stuff. So this is me. Thank you. Very nice, very nice. तो सजील. Assalamu alaikum everyone. I'm a data engineer as well. मैं almost 2.5 years से data engineering की field में काम कर रहा हूँ. I started with machine learning initially. उसके अलावा I have a diverse tech stack as well. Initially जब मैं आया था तो I worked on Teradata based data warehouse. उसके अलावा then we shifted to Snowflake, which is a cloud based data warehouse. उसके अलावा we use Python for ETL. We use different scheduling tools, orchestration tools like Control-MN, Airflow. उसके अलावा we do use ETL tools as well, which is Verscape and Matillion. So the major work that we do is to make end-to-end pipelines and to design the data warehouse in such a way that it is efficient for the company that we work for. So that's about it. Okay, thank you very much, Sajil, for joining, and Temur. Hello, everybody. I've been working in the data engineering industry for about 2.5 years now. I started off as an ETL engineer. स्टार्ट मैंने इस्लामाबाद की एक कंपनी से ही लिया था. वहाँ के बाद फिर मैं नस्ट में मेरे कोलीग भी हैं यहाँ पे दानियाल, इनके साथ मैंने काम किया कुछ अर्सा. उसके बाद इस टाइम मैं एक रिमोट कंपनी है कैनेडियन, उसके साथ काम कर रहा हूँ एज अ डेटा इंजीनियर. सो मेनली मेरा स्टैक भी पाइथन सीक्वल ये यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और थोड़ी सी गोलैंग भी है. और उसके अलावा मेरा जो काम है वो ज़्यादातर टूल ओरिएंटेड है. शुरू में तो टोटली टूल ओरिएंटेड था. अब ये है कि ग्रेजुअली जब मैं दूसरा शिफ्ट किया तो उस दौरान से मैं थोड़ा लैंग्वेज ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया. तो स्ट्रीमिंग पाइपलाइंस पे ज़्यादातर काम किया मैंने, और डेटा वेयर हाउसिंग की तरफ ज़्यादा नहीं किया, पर ये है कि किया उसका भी है. तो दैट्स अबाउट इट. So basically, Tamur is all rounder, right? Yeah, more of an all-rounder, I'd say. No doubt, and a great person as well. So हम लोग start करते हैं with the questions. So सबसे पहले जो question है, obviously that would be what is data engineering and how would you explain it to someone who is like just about to getting started in the data engineering, और या फिर कोई बंदा है जो सोच रहा है कि I should get into the data engineering and he needs help. So how would you explain data engineering to him? And what is data engineering is? So I would like to go first on that. Yeah. Sure. Yeah. So जो simplest definition है और जो like make जिसकी हम लोग एक सेंस बना सकते हैं या एक स्टोरी वाइज है, वो ये है कि एक डेटा इंजीनियरिंग मेरे नज़दीक a combination of software, mathematics or processing stuff and the business aspect
लाइक इन तीनों का जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग है। दैट मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हुए आप कोई डेटा के थ्रू बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो दैट इज डेटा इंजीनियरिंग। लाइक मोस्ट जो हमारे पास ट्रेडिशनल है उसमें लाइक ये ETL या सॉर्ट ऑफ दैट हम लोग रिलेट करते हैं या इसको वो रिलेट करते हैं उसके साथ। लेकिन लाइक मैंने जितना देखा है वो यही है कि डेटा इंजीनियरिंग की ना सिर्फ कि डेटा डिलीवर होना चाहिए इंटीग्रेशन पार्ट के ऊपर, but also they also do data validation and what data is required to the data scientists and other teams, right? So that is their responsibility. And also I'm seeing a lot of data security stuff, like they should also be able to handle the security aspect of the data as well. Yeah, That's so really that nice. That's new. So Timur, आप बताएं. डेटा इंजीनियरिंग जैसे दानियाल भाई ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इसको। मैं अगर एक बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बताऊं तो डेटा इंजीनियर का बेसिकली रोल ये होता है कि उसने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। और कंपनी के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एनालिटिक्स हैं जो कंपनी ने परफॉर्म करनी है, उसके लिए डेटा उसको चाहिए होगा। तो इनिशियली जो डेटा हमारे पास होता है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता कि उसके ऊपर डायरेक्ट एनालिसिस किया जाए, और जाहिर है वो सोर्स पे भी नहीं होता जहाँ पे उसके ऊपर एनालिसिस हो। तो डेटा इंजीनियरिंग टीम का बेसिकली रोल यही होता है कि एक सोर्स से डेटा उठाए, उसके अंदर जो भी प्री प्रोसेसिंग करनी है वो करे, और उसको एक ऐसी सोर्स पे जाके रख दे जहाँ पे एनालिटिकल टीम जो है, डेटा साइंस की टीम, मशीन लर्निंग की टीम, वो उसको यूटिलाइज करके कोई मीनिंगफुल आउटपुट जो है वो कंपनी को शो करवा सके। तो ये मेरे लिहाज से डेटा इंजीनियरिंग को अगर हम लेमैन टर्म्स में डिफाइन करें तो कुछ इस तरह की होगा। Nice. So हम ये कह सकते हैं कि it's a bridge between the data from where it's coming and also with the analyst team, right? Yes. So Exactly. Sajil. yep. In some cases Yeah. the consuming party can be the customer as well. Directly. Yeah. Okay. अच्छा, तो एग्रीड विद तैमूर एंड दानियाल। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूंगा और थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक तो इनिशियली आ गई हमारे पास डेटा और फिर इंजीनियरिंग। सो डेटा इज व्हाट वी बेसिकली जनरेट। सेल्स हो गई, ट्रांजैक्शंस हो गई, कस्टमर का डेटा हो गया, स्ट्रीमिंग डेटा हो गया, पिक्चर्स हो गई, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। सो दैट इज ऑल द डेटा एस्पेक्ट। And engineering part is to design a pipeline in such a way that जो डेटा आप ingest करा रहे हो वो सोर्स से लेके आपकी टारगेट तक एफिशिएंटली पहुंच सके। इसको जो है वो डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड कहेंगे। सो डेटा जनरेट हो रहा है, अब उस डेटा को एक अपने टारगेट तक लेके जाना है, उसको उसकी पाइपलाइन डिजाइन करना है डेटा इंजीनियरिंग। उस पाइपलाइन को डिजाइन करने में जो आप स्क्रिप्ट्स लिखते हो, जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, जिसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, पाइथन स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं जैसे कि एसक्यूएल हो गई। सो दैट इज ऑल डेटा इंजीनियरिंग इज अकॉर्डिंग। Very nice introduction of the data engineering. So moving on towards the next question. So basically अगर एक बंदे ने इस फील्ड में आना है, जैसे आपने बताया सजील, आपने बताया दानियाल, आपने बताया कि यू हैव स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग। सो रेलेवेंट डिग्रीज कौन सी हैं? क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं वो मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, इसकी तो डिग्रीज अब बैचलर्स में भी आ गई हैं, इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, मास्टर्स में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी डेटा इंजीनियरिंग की जो डिग्रीज हैं बैचलर्स और मास्टर्स में, वो इतने ज्यादा मुल्कों में नहीं देखने को मिल रही। तो उसके लिए फिर आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सी रेलेवेंट डिग्रीज हैं, कौन सी रेलेवेंट इंडस्ट्री है जिससे आप फिर मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स डेटा इंजीनियरिंग? And is it like also I would like to have your say, specifically Danial, how did you like come into data engineering in detail? Because I know, but I think people should know as well, because या सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि डेटा इंजीनियरिंग के लिए डिग्री रिक्वायर्ड है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट लाइक मैं यूएस क्लाइंट्स के साथ काम करता रहा हूँ, डायरेक्ट कंपनीज के साथ, और इवन कि यूएस सिटीजन जो है उनका बैकग्राउंड, जो डेटा इंजीनियर मेरे साथ काम करते थे उनका किसी का फिजिक्स के अंदर बैकग्राउंड है, किसी का प्योर मैथमेटिक्स के अंदर है, इवन कि जियो फिजिक्स के भी काफ़ी सारे आए थे। तो फ्रॉम एज अ पाकिस्तानी, तो जो हमारे लिए कॉमन डिग्रीज हैं लाइक CS हो गया या SE हो गया, इवन का फाइनेंशियल के बैकग्राउंड से भी लोग आ रहे हैं।
जो फाइनेंशियल बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग में ना प्रेफर ये किया जाता है कि आपके पास डोमेन नॉलेज कितना है उस प्रोडक्ट का, यानी आपको पता हो कि कस्टमर ने या आपके पास जो डेटा साइंस की टीम है उसने कह दिया लाइक सपोज मुझे अगले मंथ का टर्न ऑफ प्रिडिक्ट करना है तो मुझे ये डेटा चाहिए, आपको पता होना चाहिए लाइक इसके लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा। तो काइंड ऑफ आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आई वुड से लाइक स्किल्स के अंदर आपके पास अगर पाइथन सीक्वल जिस प्रोग्रामिंग या सर्टिफिकेशंस में या डिग्रीज के अंदर अवेलेबल हो वो बंदा आ सकता है इजीली, और डिपेंडेंट नहीं है आपके, आप लाइक अगर आपने किसी इकोनॉमिक्स में डिग्री किया तो आप डेटा इंजीनियरिंग में नहीं आ सकते। और स्पेसिफिकली जो ऐड करते चलूं, जबकि आजकल हमारे पास there are like plenty of stuff on internet for programming like languages courses, so Yeah. I think और जो आपकी बात से जो crux है वो ये है कि basically programming is the main thing, वो आपको आनी चाहिए whether you have the degree or not, right? या यानी आपको Okay, लाइक सेंस होनी चाहिए लॉजिक की। और जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि लाइक मैं आया कैसे हूँ, तो लाइक मैं डे टू डे मशीन लर्निंग के टास्क तो कर रहा था, असलान हमारे साथ मेरे कोलीग रहे हैं पहले, तो इनको पता था, तो हमारे पास डोमेन नॉलेज उस तरह नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और हमें पूरा एक खुद ही डेटा कैटर करना, एपीआई से डेटा लेना, प्रोसेस करना, लाइक इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड अ टीडियस टास्क एंड वी हैव टू डू इट रिपीटेडली लाइक इन दैट मैनर। सो हम लोग फिर वहाँ पर लाइक एक्सप्लोर किया कि ईटीएल डेवलपर और ये डेटा इंजीनियरिंग वगैरह हम लोग कैसे करें, तो फिर हम लोगों ने कहा लाइक इट्स आवर डे टू डे टास्क, व्हाई शुडंट वी एक्सप्लोर दिस। द फन पार्ट इज कि डेटा इंजीनियरिंग में आपको टेराबाइट ऑफ डेटा, पेटाबाइट ऑफ डेटा, उस स्केल के ऊपर जब आप खेलते हो ना, वो एक फन पार्ट, और उसको मैनेज करने का, कम टाइम में प्रोसेस करने का, कम रिसोर्सेज यूज करने का, कॉस्ट कम करने का, जब आप कम कॉस्ट में हाई डेटा प्रोसेस करते हो तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ अ डेटा इंजीनियर, और यही एक्सपेक्ट भी किया जाता है आपसे इंडस्ट्री के अंदर। जबरदस्त जबरदस्त। सो सजील, सो मैं अगर डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्रेंस की बात करूंगा स्पेसिफिकली, तो मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ लोगों में। एक तो फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप में होनी चाहिए, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग की जब चीज़ें आप डिज़ाइन कर रहे होते हो आपके सामने ढेर सारे मसले आते हैं, ढेर सारे इश्यूज आते हैं, और उसको आपको सॉल्व करने का आप में स्टैमिना, परसेवेरेंस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उसको सॉल्व कर करेक्ट सको। करेक्ट। लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। उसके अलावा वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव लर्न्ड इज के आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो आपको टास्क देगा, लेट्स से आप इफ यू टॉकिंग टू अ क्लाइंट, तो वो आपको लेमन टर्म्स में आपको बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स तो बता देगा, बट उसमें से आपने डेटा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, वो दैट इज़ वेरी नेसेसरी। कि सोर्स क्या है, आपकी कितनी वॉल्यूम होगी, कहाँ पे जाएगा डेटा, ठीक है, उसको कितनी कॉस्ट उसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर बेसिस के ऊपर आप बेसिकली जो डिज़ाइन करते हो। सो ये चीज़ आप में होनी चाहिए। और टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी बहुत होता है कि आप में सवाल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि आप कॉन्स्टेंटली सवाल जनरेट करो, क्लैरिफाई करो चीज़ें, और जितने आप सवाल करते हो उतनी आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है और इजियर टू डिज़ाइन हो जाती है। अच्छा, आई थिंक सजीव का इंटरनेट कनेक्शन इशू हो गया, सो तैमूर आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो डिग्री की जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के अंदर रह के आपको कौन सी डिग्रीज हैं जो इस फील्ड में ब्रेकिंग करने के लिए काम आ सकती हैं, उसमें फ़िलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जो कि अभी ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी जो लड़के मैंने देखे हैं इस फील्ड के अंदर, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है या पावर इंजीनियरिंग, इस तरह के लड़के भी मैंने बहुत सारे देखे। तो मैं ज़ाती तौर पे खुद मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हूँ और मैंने इस तरफ स्विच किया था। तो इसमें डिग्री की उस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर आपकी सीएस की डिग्री हो तो इट्स अ लॉट मोर ईजियर, ठीक है। और आप एक, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रोग्रामिंग की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जो एक सीएस के लड़के की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इस फील्ड में आ नहीं सकते, आप वहाँ से भी सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। बस ये है कि इस साइड से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डरना तो नहीं ये, चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, आप यानी कि कहीं से भी स्विच कर सकते हैं। जैसा दानियाल भाई ने कहा कि यार फाइनेंस के भी लड़के इन्होंने देखे हैं इधर, ठीक है,
और बाकी फिजिक्स के यानी भी कि बहुत देखे हैं। फिजिक्स के भी देखे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फील्ड से बंदे आते हैं, क्योंकि इसकी अभी कोई डिग्री इस तरह डिफाइंड नहीं है। मशीन लर्निंग वगैरह की फिर कुछ ना कुछ डिग्री डिफाइन हो रही हैं, अब लोग उस तरह की डिग्रीज को प्रेफर कर रहे हैं रोल्स में। डेटा बिल्कुल इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जो कि अभी ग्रो कर रही है, तो इसकी उस तरह भी डिग्री, इसके मास्टर्स भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं, सही। तो बैचलर्स तो दूर की बात है अभी। तो इस वजह से इसमें डिग्री की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग बहरहाल होनी चाहिए। आप जहाँ से भी आ रहे हो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, उसके बगैर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि बेसिक सीएस के कॉन्सेप्ट आपको बहरहाल करने ही है इधर अगर आप हैं। बाकी दूसरा और सवाल जो आपका था कि मैं कैसे आया हूँ, तो ज़्यादातर लड़के जो इस फील्ड में आते हैं, वो मैंने जो देखे हैं ज़्यादातर, वो मैंने देखे हैं वेब डेवलपमेंट के लड़के आते हैं या मशीन लर्निंग के लड़के आते हैं। ज़्यादातर मैंने ये देखा है, बहुत कम ऐसा होता है। यानी कि आई कंसिडर माई सेल्फ लकी पर्सन इन दैट रिगार्ड कि मेरा डायरेक्ट ही ईटीएल वाली तरफ आया था। ज़्यादातर मैंने लड़के देखे हैं जो पावर बीआई की तरफ से आते हैं, डेटा इंजीनियरिंग की तरफ, जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं, ठीक है। वरना ज़्यादातर यही होता है कि एमएल के लड़के होते हैं या फिर आपके क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट के लड़के होते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ईटीएल के थ्रू आया था। मेरे यानी कि जो पहली जॉब थी मेरी वो ईटीएल से रिलेटेड थी, डेटा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड। वहाँ से डायरेक्ट फिर मैं डेटा इंजीनियरिंग की तरफ आया था। तो ऑलराइट ये ऑलराइट। मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था। और सजील, आप अपनी बात कंप्लीट करें, इफ यू वांट अच्छा, टू ऐड अप समथिंग। नहीं, मोस्टली वही था कि दीज आर द ट्रेड्स दैट वी लुक फॉर, और हर बंदे में उसको इंस्टॉल करने चाहिए अगर वी वांट्स टू बी अ डेटा इंजीनियर। सेकंड मेरा जो आंसर रह गया वो यही था कि हाउ डिड आई केम इनटू दिस फील्ड। इसमें यही है, आई वाज एन एआई इंजीनियर बिफोर डेटा इंजीनियरिंग। और एआई में जब मैं काम कर रहा था तो आपको रियलाइज हो जाता है हाउ इम्पोर्टेंट डेटा इज, बिकॉज योर मॉडल इज entirely dependent on the data. तो that is why मैंने सोचा कि why not explore data engineering, और इस तरीके से I came into data engineering. आई थिंक आप सबके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यू फॉल इन लव विद द डाटा, राइट? Okay, so next thing is story of you getting into the job. You can tell either one of the stories or all the stories that got, for example, multiple interviews stories, or either one of that. और उसके अंदर फिर क्या था? Did you like search on the LinkedIn? आपको कोई reference मिला था? किस तरह से? थोड़ा बताएंगे दानियाल? Yeah. So recently I joined a company and it was a 5-step interview process. So पहला स्टेप था वो रिक्रूटर के साथ होता है, वो लाइक मैच करते हैं आपकी बिहेवियर और आपकी सीवी के साथ, और लाइक थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि लाइक ये प्रोफाइल कैसे फिट हो सकती है। सेकेंड इंटरव्यू जो था वो हुआ मेरा टेक्निकल, और टेक्निकल हुआ लाइक इस तरह के पार्शली टेक्निकल था और पार्शली वो बिहेवियर इंटरव्यू था। तो उसमें लाइक सीक्वल था, अपाचे स्पार्क की कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, बिग डेटा, पार्टीशनिंग, क्लस्टरिंग, इस तरह के। तो थर्ड इंटरव्यू तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो मेरा इस तरह हुआ है कि वो था प्योर पाइथन का, लेकिन जो इंटरव्यूअर था ना, लाइक मेरी कोशिश होती है कि मैं इंटरव्यूअर जो होता है उसका अगर नाम मुझे पहले मिल जाते हैं इंटरव्यू से, तो मैं उसकी पूरी प्रोफाइल स्कैन करता हूँ, देखता हूँ उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आंसर भी उस तरीके के प्रिपेयर करता हूँ, या एग्जांपल्स के अंदर थोड़ी सी उसकी फील्ड का डोमेन का डाटा ऐड कर लेता हूँ, लाइक ये मैंने उस पर पीओसी की हुई है इस डेटा के ऊपर या आपके ना। और उसका फायदा हुआ फिर आपको? उसका ये हुआ कि लाइक उसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए थे गिटहब के ऊपर, तो मैंने उसका कोड स्टडी किया, उसका पैटर्न स्टडी किया कि लाइक वो किस तरह कोड करता है, और मेजोरिटी उसने फंक्शनल प्रोग्रामिंग की है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसका ध्यान है, और मल्टी थ्रेडिंग करता है, सिंगल थ्रेडिंग पे काम करता है, इस तरह की। तो मैंने वो एनालिसिस किया। जब इंटरव्यू हुआ तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन फंक्शंस का पूछा, तो आई वाज रेडी। तो करते करते जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने उसको फिर बताया, मैंने कहा मैंने तुम्हारा एनालिसिस किया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ये बहुत लाइक करते हैं कि आपने रिसर्च की है इंटरव्यू से पहले। नंबर 4 इंटरव्यू पर हायरिंग मैनेजर के साथ होता है, जिसकी टीम में आपने जाना होता है। वो आपको बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, वर्कलोड कितना है, टीम मेंबर्स कितने हैं, और फिफ्थ आपका जो डायरेक्टर ये के फोर्थ वाला है और फिफ्थ वाला, ये थोड़ा डॉन्टिंग सा लग रहा है, लेकिन आई थिंक अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, इतना मुश्किल नहीं होता आई थिंक नो जो लाइक फोर्थ नॉन टेक्निकल नहीं वो देखें।
फोर जो है हायरिंग वो तो नॉन टेक्निकल है, लाइक उसमें इतना कुछ हम्म बेसिकली देखने के यार बंदा बोल सकता है क्वेश्चन हम्म क्वेश्चन आंसरिंग स्किल्स कैसी है इसकी, या फिट है हम्म हमारी कल्चर के अंदर, वो तो जनरली आपसे लाइक उसमें से डिस्कशन किया गया आप फूड के अंदर आप कस्टम फूड कैसे बनाते हो, या कोई ऐसी डिश है जो आपको पसंद हो आप कैसे बनाओगे, या वो हाँ इस तरह ना सॉर्ट ऑफ रेसिपीज की डिस्कशन थी। फिर फिफ्थ जो था इंटरव्यू डायरेक्टर के साथ था, तो वो डायरेक्टर भी सॉर्ट ऑफ चिल होता है, उसमें सिर्फ लाइक वो देखते हैं कि स्पीकिंग पावर है कि नहीं, वो भी लाइक मोर देन 7 मिनट्स 8 मिनट्स तो होते हैं। तो ओके इंटरव्यू भी है एज लॉन्ग एज आपकी जो बेस लाइन है ना, यानी जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो, मीन्स फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, फ़र्क है इन दोनों में, इस तरह की चीज़ें कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना, तो बेसिक ऑल आपकी राइट स्ट्रॉन्ग हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल राइट ग्रेट एक्सप्लेनेशन दानियाल सो तैमूर इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस अगर मैं यानी कि एज अ फ्रेशर एक बंदा अगर इसको सुन रहा है तो उसको अगर मैं बताऊं तो ये है कि इंटरव्यूइंग जिस तरह आपकी प्रोग्रामिंग एक स्किल है ना, उसी तरह इंटरव्यूइंग भी एक स्किल है। आपको इंटरव्यू देंगे तो आप इंटरव्यूज में अच्छे होंगे। ये एक ऐसी चीज़ करेक्ट है कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है, जितने ज़्यादा देंगे उतना अच्छा है। साथ में थोड़ा पाकिस्तानी कल्चर है तो थोड़ा सा आपको रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ जाती है इनिशियली फॉर समबडी हु इज़ जस्ट ब्रेकिंग इन। उसके लिए ये होता है कि आपका रेफरेंस हो तो ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं ज़ाती तौर पे अगर बताऊं तो मेरा यानी कि एक दोस्त था जिसके रेफरेंस से मैं पहली कंपनी में गया, ईटीएल की जॉब पे डायरेक्ट गया। तो ये है कि अगर आप वो नहीं भी हो तो आपके लिए यही एडवाइस किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दें। जितने ज़्यादा आप देंगे आप उतना उतनी आपकी उसके ऊपर ग्रिप होगी और उतना आसान होगा आपके लिए। मैं आगे भी जो मैंने स्विचेस वगैरह किए जितने भी, मैं इस चीज़ का बड़ा यानी कि आई रियली वाउच फॉर इट कि कोई भी बंदा ना आपने अगर स्विच नहीं भी करना यू शुड ऑलवेज गिव इंटरव्यूज। उससे आपको मार्केट का अंदाज़ा रहता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। या तो ये आजकल है कि सवाल मैं कौन से पूछे जा रहे हैं रीसेंट हाँ टेक्नोलॉजीज कौन सी चल रही हैं आप भी साथ साथ लर्न कर रहे होते हैं करेक्ट ऐसा ही है। तो सजील ये जी जी तैमूर या नहीं बस ओके या एग्जैक्टली मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। इनफैक्ट मैंने भी यही कहना था तो तैमूर ने बात की। बस यही है, रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि डरना नहीं है इंटरव्यू से, और देते रहो इंटरव्यूज और सीखो कि क्या फेलियर्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रॉन्ग सेट्स हैं, उन चीज़ को एनालाइज करो और इंटरव्यूज देते रहो, इंशाल्लाह यू विल ब्रेक थ्रू। जबरदस्त अच्छा चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट आर द जनरल क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड सबके एक्सपीरियंसेस से थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे जी दानियाल ड्यूरिंग इंटरव्यू राइट। हम्म सो और प्लस ये कि कोडिंग का कितना एक इसमें किस तरह के हाँ क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के बिकॉज आई थिंक हाँ डेटा इंजीनियरिंग में बहुत टुवर्ड्स डेटा होता है और टुवर्ड्स एसक्यूएल ज्यादा होता है जी। तो लाइक डेटा इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से इंटरव्यू टफ नहीं होता, तो भी ऑनेस्ट आपने जिस तरह सजील ने बात किया तैमूर ने, इंटरव्यू आपको जितना चिल रहोगे उतना अच्छा होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 सीक्वल, लाइक सीक्वल के तो आपसे वो पूछेंगे लाजमी, क्योंकि डेटा जो देखें लाइक 80% ऑफ द कंपनीज या 90% भी अगर कर लें वो RDBMS या किसी कोई भी डेटाबेस यूज़ कर रही होती है, और डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बनाई हुई है सीक्वल वो आनी चाहिए। तो अब आपको वो बेसिकली देखते हैं कि डेटा रीड कर सकता है नहीं कर सकता, तो सीक्वल एक है। और पाइथन का लाइक बेसिक कुछ दे देते हैं आपको, लाइक फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है इसको रिवर्स करना है, ये स्ट्रिंग है इसको रिवर्स करना है, लाइक सॉर्ट ऑफ देखने के लिए कि लड़का कोड कर लेता है या नहीं करता। और जो थर्डली मेजर क्वेश्चन जो एक मैंने काफ़ी नोट किया है वो ये है कि अगर आप डेटा इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का बेसिक नो होना चाहिए, बिग डाटा का। यानी सही अगर आप डेटा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करो तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेशन ये होती है कि डेटा का जो स्केल है उसको कैसे लाइक आप मैनेज कर पाओगे। हो सकता है उसके लिए ऑलरेडी सिस्टम्स हों, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपको एटलीस्ट नॉलेज हो कि बिग डाटा होता है क्या है और व्हाट डिफाइंस एज अ बिग डाटा। तो लाइक मेरे उसमें यही रहे हैं। बाकी डोमेन का कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो उसकी बेसिक आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। स्टडी आपने किया हो उस कंपनी का, आप होम पे स्टडी करके जाओ, उनकी प्रोडक्ट स्टडी करके जाओ, सॉल्यूशंस जो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए यूज़ केसेस, और देखो कि उसमें अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट नज़र आती है और आप उसको इंटरव्यू में सजेस्ट करो तो दैट इज़ अ वेरी हाई
या दैट्स अ वेरी हाई पॉइंट. सो +1 हो जाता है आपका इंटरव्यू के, यार इसने एटलीस्ट रिसर्च किया है, पेन लिया है इसने. वेरी गुड पॉइंट दानियाल. जी तैमूर. क्वेश्चंस के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जो यानी कि एंट्री लेवल के लिए बहुत डिफरेंट अप्रोच होती है कंपनीज की, और जैसे जैसे वो यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं तो उनकी अप्रोच चेंज हो जाती है. एंट्री लेवल के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सीक्वल आनी चाहिए. सीक्वल सही. बिल्कुल यानी कि जितनी परफेक्ट आप कर सकते हैं आप करें, क्योंकि आपके 95% क्वेश्चन जो होते हैं ना एंट्री लेवल पे, वो या तो डेटा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड पूछेंगे या आपसे सीक्वल पूछेंगे, सीक्वल लिखवाएंगे या सीक्वल पूछेंगे. दैट्स इट. ठीक है. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि यार पाइथन भी आपको आनी चाहिए, लेकिन पहली प्रेफरेंस सबकी सीक्वल है ही है. अच्छा, तो हमारे कोई भी व्यूअर्स को थोड़ा बता दें तैमूर कि सीक्वल और एसक्यूएल में कोई फर्क है क्या या नहीं सेम नहीं, है? सीक्वल एसक्यूएल सेम ही चीज़ है. बिल्कुल. पर ये है कि इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन हाँ ये यानी कि सेम कुछ है. लोग सीक्वल कहते हैं, कुछ एसक्यूएल कहते हैं, तो वो कोई तरह. हाँ. तो सही. ये इसका बस यही है कि इसके ऊपर आपकी जितनी ग्रिप हो ना एंट्री लेवल के लिए, तो वो बेहतर है. और ज़्यादातर सवाल इसी में से होते हैं. बाकी इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की जिस तरह बात की दानियाल ने, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट करो, पर आपको पता होनी चाहिए. यानी कि आपको रटे रटाए कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आते हो. कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि हडूप पता हो आपको क्या है, हडूप का इकोसिस्टम क्या है, मेन मेन कंपोनेंट्स क्या है उसके, कौन सी चीज़ क्या करती है. हालांकि वो आपसे कुछ करवाएंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको अंदाज़ा हो कि यार डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग काम कैसे करती है, क्योंकि ये एक बहुत की एस्पेक्ट है डेटा इंजीनियरिंग का. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है ये यानी कि जैसे जैसे आप एक्सेल करते हो तो आप देखते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ लगाया जाता है काम में, मेन सीक्वल से हटा के. तो ये है कि यानी कि इनिशियली भी आपको इसकी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यानी कि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है along with the practical things. ऐसे Okay, ही so है. Sajil, let's say you have an interview और वो उसमें है, उसमें वो बेसिकली क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं करते, लेकिन देयर इज अ चांस कि वो क्लाउड के बारे में भी पूछ लें आपसे. हाँ हाँ 100%. ये जो चीज़ें होती हैं ना, अब देखो फॉर एग्जांपल आपको नहीं भी पता है, एंड इफ यू ट्राई एंड फाइंड इट एंड इफ यू ट्राई एंड आंसर इट, वो भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सी चीज़ें डिपेंड करता है. सो इंटरव्यू इज जस्ट अबाउट यू डिपेक्टिंग योर पर्सनालिटी, हाउ यू अप्रोच प्रॉब्लम्स. आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. अगर आपको नहीं आती कोई प्रॉब्लम, उसका आंसर नहीं आता, तब आपकी अप्रोच क्या है. आप कोशिश करते भी हो सॉल्व करने की कि नहीं करते हो, या आप बिल्कुल ही हार मान लेते हो. सो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट जजिंग योर पर्सनालिटी. उसके अलावा मैं अगर तैयारी में थोड़ा सा बहुत ऐड करना चाहूँगा तैमूर और दानियाल की बात, तो यही है कि अगर आपने डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता. देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप बेसिक कोर्सेज लो, डेटा वेयर हाउसिंग रिलेटेड लो, एसक्यूएल के ऊपर लो, ठीक है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर लो, एंड इट्स जस्ट अबाउट 2 to 3 वीक्स में आप मतलब इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप इजीली इंटरव्यू दे सकते हो. तो इट्स जस्ट अबाउट कि वेदर यू आर विलिंग टू कम इन टू दिस साइड. अगर आप विलिंग हो तो आपके पास इतने ढेर सारे रिसोर्सेज और कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इजीली एंटर कर सकते हो और आप इंटरव्यू को नेल कर सकते हो. अच्छा, इधर से ही एक और क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि इतने ज्यादा कोर्सेज, यानी कोर्सेज की भरमार हो गई है इंटरनेट पे, चाहे वो डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग. तो बेसिकली जो न्यू कमर्स हैं उनका अक्सर ये होता है स्ट्रेटेजी कि जी ये वाला कोर्स भी कर लो, ये वाला भी कर लो, ये वाला भी कर लो. तो उसको आप कैसे देखते हैं? इज इट पॉजिटिव थिंग, और यू थिंक कि नहीं यार, जॉब पे पहले आ जाओ और उसके बाद चीजें सीखो, नहीं, या फिर साथ साथ अप्लाई करते रहो? ठीक है. अब एक तो आपने इनिशियली डिसाइड कर दिया ना कि यू वांट टू एंटर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग फील्ड. अब अगर ये भी आपसे डिसाइड नहीं हो रहा कि वेदर यू वांट टू बी अ डेटा इंजीनियर, क्योंकि डेटा में काफी ढेर सारी फील्ड्स हैं. एमएल भी क्लोजली रिलेटेड करती है, एआई भी क्लोजली रिलेट करती है, फिर डेटा इंजीनियरिंग में सब फील्ड्स अलग है. डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, ठीक है. उसके बाद डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स अलग होते हैं. सो अब इसमें ये फिगर आउट करना कि आपने किस फील्ड में जाना है, वो सिर्फ इसी तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो जब आप चीजें सीखना शुरू करते हो. किस में आपका इंटरेस्ट आ रहा है. आप एआई को टच करो, आप एमएल को टच करो, आप डेटा इंजीनियरिंग को टच करो, आप डेटा साइंस को टच करो. फिर आप
ग्रैब करो कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ आ रहा है, आपको मजा किस फील्ड में आ रहा है, फिर आप उस तरफ जाओ. दिस इज हाउ यू बेसिकली गेज कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है. कोई आपको बता नहीं सकता कि आप किस में जा रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आप खुद चेक करो, खुद पढ़ो, खुद देखो कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ आ रहा है, और फिर उस तरफ आप ज्यादा अटेंशन दो. इनिशियली ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन सबको टच करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी फील्ड में क्या चीजें हैं, और फिर आप उसको आगे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो. फिर अगर कोर्सेज की बात आ जाती है, हम क्या करते हैं, हम यूजुअली हम जिस तरीके से फिल्टर आउट करते हैं कोर्सेज, वो यही है कि किसकी रेटिंग अच्छी है, किसके ऊपर कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, सर्टिफिकेशन है, किस तरीके की सर्टिफिकेशन है. तो देर आर अ लॉट ऑफ मेट्रिक्स जिसकी बेस पे आप कोर्सेज को स्क्रूटनाइज कर सकते हो और ले सकते हो. ऑल राइट. दानियाल और तैमूर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? कोर्सेज से रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि नया जो लड़का इस फील्ड में आ रहा है ना, पेड कोर्सेज तो किसी भी किस्म के करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप कोई पेड कोर्स करके इस फील्ड में आ सकते हो तो ये बिल्कुल स्कैम है. क्योंकि आजकल ये चीज़ क्योंकि ट्रेंड में आ रही है, तो बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये चूरन, मैं कहता हूँ चूरन बेचा जाता है. ये तो ये है कि यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल है बिल्कुल. यानी कि अगर आपने बाकी यानी कि कुछ हडूप से लेकर पाइथन, सीक्वल, हर चीज़ बिगिनर से लेकर एडवांस आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में मिल जाएगी. ठीक है, तो आपको कोई भी पेड कोर्स करने की अव्वल तो ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात ये है कि सर्टिफिकेशंस की जहाँ तक बात है ना, कि सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने हैं, तो एक एंट्री लेवल बंदे के लिए ना सर्टिफिकेट्स बहुत बूस्ट देते हैं. तो सर्टिफिकेट्स आप सर्टेनली करें, लेकिन सर्टिफिकेट्स आप फ्री वालों की तरफ पहले तवज्जो दें, पहले वो कर लें, फिर पेड की तरफ भी जाएं. अगर लेट सपोज आपको लगता है कि दैट इज़ वर्थ इट, तो बेशक आप जाएंगी. लेकिन इनिशियली आप बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, पाइथन के हैं जो कि आप फ्री कर सकते हैं, लीड कोड है, हैकर्स रैंक है, बहुत सारी इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फ्री सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं पाइथन की, सीक्वल की. ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पेड की तरफ किसी भी नए लड़के को जाने की ज़रूरत है, लेकिन सर्टिफिकेट्स ज़रूर करें. क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे सर्टिफिकेट से आपको, यानी कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ना होता ही है कि सर्टिफिकेट से बहुत ज़्यादा कुछ बंदा सीखता नहीं है. सीखता बंदा चीज़ें बना के ही है. लेकिन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपकी डेडिकेशन शो करते हैं. एक बंदा रेज्यूमे देखता है ना, जिस रेज्यूमे के अंदर 12 सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, तो उसको पता है यार ये लड़का डेडिकेटेड है. कोई बंदा लिंक्डइन खोलता है, उस लिंक्डइन के अंदर अगर 10-12 सर्टिफिकेट्स अगले ने किए हुए हैं, नया फ्रेश बच्चा है, तो अगले को पता लगता है कि यार हाँ ये लड़का डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है. तो ये बेसिकली इमेज पोर्ट्रे करने के लिए सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं. बाकी आप सर्टिफिकेट से कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं सीखते. वही चीज़ आप यूट्यूब की वीडियोस से भी बल्कि उससे बेहतर सीख सकते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं. तो ये चीज़ मैं, तो बाकी दानियाल दानियाल, भी आप, क्या ये getting the certificates does make your CV strong? ओके. सो पहले ना शान भाई, थोड़ा सा प्रीवियस पॉइंट जो है और करंट पॉइंट को मैं थोड़ा मिक्स करना चाहूँगा. तो पहला पॉइंट तो ये है ना कि जब इंटरव्यू हो रहा हो ना, तो आपने एक माइंडसेट से जाना है कि अगर वो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स दे वांट टू हायर यू. वो सिर्फ ये आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि आपको कितनी पॉलिशिंग की जरूरत है. अगर आपको इंटरव्यू हो रहा है ना, आप इस माइंडसेट से जाएं, दे वांट टू हायर यू. बस वो Because कितना बहुत सारे CVs में से आपकी CV सिलेक्ट हुई है. या सेकंड, जो मेरा सजेशन है वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आपने ना स्पेसिफिक रखनी है. जिस टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया हुआ है या जो आप करना प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए स्पेसिफिक रखना है. जनरल आपने कीवर्ड यूज़ नहीं करने. लाइक एक डेटा इंजीनियर है, वो स्काला या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करता है, आपने सिंपल एक जनरल प्रोफाइल रखी हुई है, तो वो एक रैंकिंग में बहुत लाइक फ़र्क पड़ता है. जो थर्ड पॉइंट है कि अगर सपोज आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर या कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, आप देख लें कि यार 10 स्किल्स मेंशन है, लेकिन मेरे साथ मैच 2 या 3 हो रही हैं. आपने चीज़ से घबराना नहीं, आपने अप्लाई कर दिया. क्या पता वो 2 से 3 स्किल्स ही मेन स्किल्स हो, बाकी क्योंकि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो यही करते हैं. ऑनबोर्डिंग के अंदर जब आपको हायर किया जाता है 1 मंथ 2 मंथ आपको वो ट्रेनिंग्स चलती रहती है. क्या पता वो बाकी स्किल्स उसमें हो. चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो एक दफ़ा CV को अपना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया करें उस जॉब के लिए. यानी अगर आपके प्रोजेक्ट्स उस जॉब के रेलेवेंट है तो उसको प्रोमिनेंट करके ऊपर करके थोड़ा सा लाएं, या उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड करें कि आपने इस चीज़ पे काम किया हुआ है. और
कोशिश ये करें कि किसी कंपनी पे अगर अप्लाई करें तो डायरेक्ट वेबसाइट पे अप्लाई करें, लिंक्डइन या थर्ड पार्टी सोर्सेज कम ही यूज़ करें, डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करें। और अगर कोई चाह रहा है कि लाइक पाइथन के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं या मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो leetcode.com एक वेबसाइट है, LEETCODE.com, वो उसके ऊपर पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं उसकी वो प्रैक्टिस कर सकता है। और datalemur.com है, वो SQL के इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक उसमें यूज़ केसेस और केस स्टडीज जिस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पर जाके प्रैक्टिस करें अपनी। लाइक मैं ये नहीं कहूँगा लाइक लीड कोड में 200 क्वेश्चन है 200 की प्रैक्टिस करें, टॉप 50 उठा ले, टॉप 50 पे दिमाग लगाए करे सोल्व, तो टॉप 50 में से रेलेवेंट ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं लाइक वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देती हैं, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है। रही बात सर्टिफिकेशंस की, तो सर्टिफिकेशन मोस्टली देख लें आप, कोर्सेरा बहुत अच्छा एक सोर्स है, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन के अपने काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज हैं, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन लाजमी रीड करनी चाहिए हमें, जिस आप टेक्नोलॉजी या टूल के ऊपर काम कर रहे हैं। उस टूल जिस तरह एयरफ्लो है उनका, आई थिंक एस्ट्रोनॉट है कि क्या है उनका अपना एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन का मैकेनिज्म है। AWS की अपनी सर्टिफिकेशन का कोर्सेज है, तो इस तरह फॉलो अप करेंगे तो लाइक एंट्री पॉइंट कहीं से भी ले लेंगे, एंड गोल वही होगा। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह दानियाल ने मेंशन किया है रेज़्यूमेज़ में ना प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट एक एंट्री लेवल बंदे के लिए ना प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर लड़के इसी वजह से स्ट्रगल करते हैं कि यार उन्होंने सीवी में कुछ रखा ही नहीं होता। आप किसी को भी सीवी देते हैं तो ज़ाहिर है सीवी में कुछ होगा तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, और एंट्री लेवल बंदे के लिए सिवाय प्रोजेक्ट्स के और कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है दिखाने को, लेकिन उससे पहले जब आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं तो उस टाइम आपके पास प्रोजेक्ट्स ही है। प्रोजेक्ट्स में आप कोशिश करें, आप पाइथन के करें, सीक्वल के करें, डेटा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड आप कुछ बना सकते हैं। कोई छोटी सी रिलेशनल डेटाबेस है उसके ऊपर आपने कुछ बना दिया, कोई स्कीमा डिज़ाइन कर लिए 2-4, इस तरह की चीज़ें उनको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। कोई बहुत बड़ी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें स्पेशली फिर वही बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वाली। आई थिंक तैमूर का इंटरनेट ड्रॉप हो गया। ओके, चलें मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली अब हम मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स मोर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो खास अभी हमने देखी भी, तो आई वुड लाइक यू गाइस टू एक्सप्लेन देम अ लिटिल बिट so that we can move on with the conversation, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो ऑब्वियस आती है वो है डेटाबेस। So how would you define or describe a database? Yes, Sajil. अच्छा, डेटाबेस आपकी बेसिकली एक डे टू डे जो डेटा रखने की जगह होती है दैट इज डेटाबेस, जिसमें आप डे टू डे बेसिस पे डेटा रखते हो, ठीक है। और डेटाबेस को आप बेसिकली कनेक्ट करते हो टू डेटा वेयर हाउस, जिसमें डेटा वेयर हाउस में बेसिकली डेटा वेयर हाउस टू डेटाबेस डिफरेंस ये होता है कि डेटा वेयर हाउस में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा होती हैं और हिस्टोरिकल डेटा होता है। सो बेसिकली जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है उसके थ्रू आप एनालिटिक्स कर रहे होते हो, और डेटाबेस में जो डेटा होता है वो आप बेसिकली डेटा गैदरिंग के लिए, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए यूज कर रहे होते हो। तो ये मोस्टली मेजर डिफरेंसेस होते हैं। Nice. जी दानियाल। मैं थोड़ी सी सजील की बात को एक्सटेंड करना चाहूँगा। होता यह था कि लाइक इनिशियली ना हर कोई डेटा स्टोर करता है, तो इनिशियल डेटाबेस में जो डेटा होता है वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, बैक एंड पे फाइल होता है, फ्रंट एंड पे सारा मैजिक लग रहा होता है, लाइक SQL लिखो डेटा आ गया टेबुलर फॉर्म में, डेटा किस तरह पड़ा हुआ है, तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, पार्टीशनिंग का, वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली फाइल्स होती हैं। तो इनिशियली क्या होता था कि ओल्ड टाइम में लोगों ने, आपने देखा होगा, सी की प्रोग्रामिंग करके फाइल रीड की, डेटा प्रोसेस किया, ये किया वो किया, लेकिन एक स्टैंडर्ड नहीं था। तो जो बेसिकली आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है वो आपको एक डेटा एक फॉर्मेट में रखने का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, वो एक फाइल्स होती हैं। उस फाइल से डेटा रीड करने की एक एब्स्ट्रक्शन लेयर डाल दी गई है, जो कि आपके पास MySQL, MariaDB या वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि डेटा अब हमारे पास जब सेव होता है किसी भी फाइल के अंदर, अब उसको रीड करने का एक कॉमन मेथड होना चाहिए था, क्योंकि सिस्टम एक जो जहाँ पे है उसको रीयूज करना चाहिए हर जगह पे। तो
जब डेटा स्टोर होने लग गया तो लोगों के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो गया, वो डेटा बेसिस कहने लगे, डेटा बेस एक कहने लगे, ठीक है। सर नाटक का डेटा बेस होता है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है, एक पाकिस्तान के शेयर के मुताबिक इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब जरूरत क्या पड़ी, जरूरत ये पड़ी कि जब हमारे पास नादरा का एग्जांपल है, पाकिस्तान में मिलियन ऑफ लोग हैं तो उनका मिलियन ऑफ CNIC की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब जब उन्होंने क्यूरी लगा के डेटा रीड करना शुरू किया, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है। फिर कॉन्सेप्ट आया कि डेटा वेयर हाउसिंग का, जिस तरह सजील ने बात की एनालिटिकल पर्पस के लिए। अब फर्क क्या है, जो हमारे पास डेटा बेसिस होते हैं वो डेटा ना रो लेवल पे स्टोर करते हैं, यानी एक रो आपके पास एक आइडेंटिफायर, तो अब आप सर्च की क्वेरी चलाओगे ना तो वो हर एक रो जाके स्कैन करेगा या डेट वाइज जहाँ पे आपने फिल्टर लगाया है, ठीक। और जो एनालिटिकल क्यूरी है वो डेटा को स्टोर रो की बजाय कॉलम में करता है, यानी सेम तरह का डेटा एक जगह पड़ा होगा तो उसको सर्चिंग छोटी स्पेस मिल गई है तो वो करेगा। सारी बातों की बात मकसद ये है कि डेटा जहाँ पे स्टोर किया जाता है या ट्रांजैक्शन स्टोर की जाती हैं, ऐसे पर्पस के लिए कि आपके लॉग मेंटेन हो, हिस्ट्री मेंटेन हो कि कब क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, तो वो आपके पास एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस बनाने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि डेटाबेस बनाने की मैंने डेटा किस तरह का रखना है, फिर डेटाबेस में टेबल्स होते हैं और आगे। So moving onwards to my next question, what is RDBMS? So I would like to take that question क्योंकि प्रीवियस के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होता है ये। RDBMS बेसिकली मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो RDBMS एक सॉर्ट ऑफ वही बात है, एक कॉन्सेप्ट है कि आपने डेटा जब आप मैप कर रहे होते हैं या डेटा स्टोर कर रहे होते हैं तो उसके एक आपने सीक्वेंस फॉलो करना होता है, यानी रिलेटेड डेटा आपके पास किस तरह होगा। तो उस डेटा के अंदर आपके पास एंटिटी होती है टेबल, एक टेबल एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स उस टेबल में उस तरह का ही डेटा पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स का टेबल है एक डेटाबेस के अंदर, या आप इसको इस तरह कंसिडर कर लें कि मेरे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है जिसका नेम यूजर्स है, तो उसमें यूजर की इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। सेम केस में डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल है यूजर्स का, उसमें यूजर कट पड़ा हुआ है। अब मसला ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे टेबल होते हैं और उन टेबल का आपस में जब रिलेशन बनता है, ये रिलेटेड सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपने किधर रखनी होती है या एक सेंस बनानी होती है, तो हम लोग थोड़ा RDBMS की तरफ आते हैं। यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली वो यही बता रहे होते हैं कि ये वाला रिकॉर्ड इस टेबल में इस रिकॉर्ड के साथ रिलेट करता है। जब आप एक रिलेशनल स्टैंडर्ड अपने डेटा में डिफाइन कर देते हैं या अपने डेटा मॉडलिंग के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट या आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर, जिससे आपको ये नेविगेशन में इजी हो कि ये रो है ये इस यूजर की है, या ये ऑर्डर था फॉर एग्जांपल ऑर्डर के टेबल में ये इस यूजर का है, तो ये एक RDBMS सिस्टम हो सकता है। सजील? या बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली बात है जो दानियाल ने बोली। बेसिकली RDBMS रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है इन बिटवीन टेबल्स। एग्जांपल यही होगी कि एक कस्टमर है, वो ऑर्डर करता है, तो कस्टमर ऑर्डर से रिलेटेड होता है। ऑर्डर जो है वो फिर आगे फर्दर फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें इनको ये इंटरलिंक्ड होती हैं और इनको डिज़ाइन करते हैं वो डेटा आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं बेसिकली कि इसको बेसिकली डेटा मॉडलिंग भी कहते हैं कि इसमें आप कहते हो कि कौन सा टेबल किससे कनेक्टेड है और किस तरीके से कनेक्टेड होगा, किस फॉरेन की से कनेक्टेड होगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो RDBMS में आती हैं। ओके, सो तैमूर, आपसे मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग ETL ये क्या चीज़ है? हमने काफ़ी दफ़ा अभी ड्यूरिंग द इंटरव्यू डिस्कस किया ETL। ETL बेसिकली आपका ना डेटा का पूरा एक साइकिल कह लें आप इसको, कि आपके पास जो रॉ डेटा प्रोड्यूस होता है ना उसको आपने यूजेबल बनाना होता है। डेटा इंजीनियरिंग का बेसिकली बेसिक मकसद ही यही है, जैसे मैंने पहले भी एक दो आपसे बात की। तो ETL बेसिकली उस पूरे प्रोसेस का, यानी कि प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग, ये तीनों चीज़ें उसमें। जैसे आपके पास कोई एक डेटा सोर्सेज है, मल्टीपल डेटा सोर्सेज है। लेट्स सपोज आपके पास सेंसर्स का डेटा आ रहा है, आपके पास कुछ फाइल्स आ रही हैं किसी भी सोर्स से, ठीक है। अब आपके एनालिटिक्स टीम ने वो चीज़ यूज़ करके कुछ प्रिडिक्शंस करनी है लेट्स सपोज, तो वो प्रिडिक्शंस तब कर सकेगी जब आप उसके पास वो सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा होगा। तो उस डेटा को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए जो प्रोसेस पूरा यूज होता है वो होता है ETL, उसको हम ETL कहते हैं बेसिकली। अब उसमें सबसे पहला स्टेप
E फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में आप क्या करते हैं कि जो मल्टीपल सोर्सेज होती है ना, वहाँ से आप डेटा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसस का डेटा आ रहा है, उसको उठाने का तरीका और है, क्योंकि वहाँ पे एक एक एंट्री एट अ टाइम आ रही है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है आपका फाइल्स का, फाइल्स आपकी पूरी पूरी फाइल्स आ रही है। तो इसी तरह मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा आ रहा है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे। उन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज़ इंक्लूडेड है जी, कि फॉर एग्जांपल नल वैल्यूज़ ख़त्म करनी है, कोई ऐसी डेटा इनकन्सिस्टेंसी है जो कि आगे जाके मसला क्रिएट कर सकती है, वो ख़त्म करनी है। ये सब करने के बाद जो थर्ड स्टेप है उसका लोड का, लोड आपने ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे आगे फर्दर डैशबोर्ड्स बनाने हैं फॉर एग्जांपल किसी ने, तो वो वहाँ से उसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अगर किसी ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाने हैं तो वो उसको एक सोर्स से लोड करके यूज़ कर सके। तो आपने एक फाइनल डेस्टिनेशन पे उसको लोड करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये बेसिकली ETL है आपकी। एक ओके थोड़ा सा मैं एक स्टडी बताना चाहूंगा असलान भाई यहाँ पर ना, ये डेटा इनकंसिस्टेंसी से ना एक बड़ा फनी वाकया सा याद आया मुझे। हमारा सॉर्ट ऑफ एक डेटा था, तो उसमें एक टेबल और एक टेबल की जो प्राइमरी दो कीज हैं, या यूजर के नेम और यूजर का नेम सपोज कर लेना, वो 1 by 1 मैच होते थे। जब हम लोग वो डेटा को कंबाइन करते थे ना, तो एक यूजर के साथ ही मैच होता था। हुआ क्या है कि हमने 2 months का डेटा कस्टमर ने भेजा, उसमें डेटा में इसी तरह की इनकंसिस्टेंसी थी कि एक यूजर 5 मिलियन ऑर्डर्स के साथ एसोसिएट किया हुआ था बाय मिस्टेक। वो नल वैल्यूज थी, लेकिन किसी ने ना वो फिल करने के लिए ना उस यूजर नेम 0 ID के साथ ना उसने कर दिया। अब वो प्रोसेस लाइक हार्डली 20 मिनट 30 मिनट कितना ले रहा था, लाइक 19 GB 20 GB डेटा प्रोड्यूस करता है। तो वो ETL की जॉब चली। मैंने कहा ठीक है। जब आउटपुट देगी तो 1.3 टेराबाइट पे पहुंची हुई। मैंने कहा लाइक हाउ इज दैट इज पॉसिबल ना। मैंने वो डेटा क्वालिटी चेक्स रन किए, वो चेक्स रन हो रहे थे, लेकिन मैंने फिर वो ऑर्डर बाय करके देखने शुरू किया कि क्या। जब डेटा को मैंने देखा तो फिर वहाँ पे डोमेन सेंस मेरी आई कि यार एक यूजर, या उस केस में हमारे पास एक IP होता है, एक कुकी होता है, तो एक वक्त में एक IP एक कुकी के साथ ही, या एक यूजर के ऑर्डर के साथ ही एक वक्त में एसोसिएट हो सकते हैं ना। तो मैंने कहा ये 5 मिलियन के साथ कैसे एसोसिएट है। तो फिर ये इनकंसिस्टेंसी हमने रिमूव की, दोबारा प्रोसेस किया, और फिर उसके बाद वो डेटा हमारी जो उसमें आ गया। तो लाइक यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि जिस तरह के डेटा के साथ मैं किस तरह डील कर रहा हूँ, किस तरह के डेटा के साथ मैं डील कर रहा हूँ। सो दैट इज वेरी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। या और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए भी आपको बहुत ज्यादा चीजों का ख्याल रखना चाहिए एक डाटा इंजीनियर को, राइट? या आपको पता नहीं होता लाइक यूजर क्या भेज रहे हैं, या कभी कभी इस तरह होता है कि बग्स होते हैं सॉफ्टवेयर में। आपको सोर्स को 100% बिलीव नहीं करना चाहिए आपको। मैं तो ये सजेस्ट ये करता हूँ अभी भी, लाइक जो हमारा मॉडल है या फ्रेमवर्क है, फर्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस के चेक रन होते हैं, क्वालिटी चेक्स होते हैं डेटा क्वालिटी के, और एक दो किस्म के होते हैं, एक डोमेन वैलिडेशन, एक डेटा वैलिडेशन। उसमें नल वैल्यूज का अगर रेट ज़्यादा है तो वो फटाफट डैग रुक जाएगा, आगे की कॉस्ट हमारी रुक जाएगी, और वो रिपोर्ट प्रॉपर सबको ईमेल होती है डेटा इंजीनियर्स को कि यार डेटा में इसमें इशू आ गया। फिर हम लोग की कुछ इन हाउस कुछ रूल्स होते हैं, जिस तरह मैंने कोई एग्जांपल दी कि एक वक्त में एक के साथ एसोसिएट हो सकती है सेम डे के अंदर, या फलानी IP एड्रेस है, उसका फॉर्मेट ये नहीं था, ये होगा, और उस IPv6 के साथ मैप करना, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ रूल्स होते हैं। अगर उसमें से लाइक 20% थ्रेशोल्ड है हमारा, अगर उससे ऊपर वायलेट होता है तो फटाफट हमारे पास रेड अलर्ट जनरेट होता है, कोड रेड कहते हैं जिसको, ये डेटा अब हमारे पास ये गलत आ रहा है, उसका क्या करें। सो वी टेक द कॉल विद प्रोडक्ट मैनेजर, he takes the call with customer, they validate that, and then they resend it. So that's the whole process of Very ETL from the nice, domain. Yeah. Daniel. Thank you for that great explanation. Moving onwards, what is a data warehouse? Sajil. Yeah, Sajil is a good expert in data warehouse. Yeah. Yeah, so data warehouse basically आपका collection of data होता है from different sources. अब इसको with an example explain करने की कोशिश करते हैं। For example, आपके पास एक कंपनी है, आपके पास जब आप कंपनी है तो आपके जाहिर सी बात है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगी, डिफरेंट डोमेन्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ई-कॉमर्स बिजनेस है लेट्स से, तो आपके पास फॉर सेल्स आपके पास अलग होगी, अलग प्लेटफॉर्म होगा, फॉर सर्वेज आपके लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा,
फॉर ऑर्डर्स आपके लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा। तो आपके पास मतलब न्यूमेरस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी डेटा लिस्टेड होता है, जिसके थ्रू आपके पास डेटा आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज न्यूमेरस जगह पे बेच रहे होते हो, न्यूमेरस स्टोर्स पे बेच रहे होते हो, तो उनके न्यूमेरस प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं। तो सिमिलरली डेटा वेयर हाउस में न्यूमेरस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिफरेंट डोमेन्स का डेटा आप लेकर आते हो, जो कि एक कंपनी स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ताकि आप वो सारा डेटा एक जगह पे रख सको और उसके ऊपर आप एनालिटिक्स प्रोवाइड कर सको। फॉर एग्जांपल मैंने डिसीजन लेना है कि मैंने एक सर्टेन प्रोडक्ट की क्या फोरकास्टिंग होगी नेक्स्ट मंथ, मुझे उसको कितना स्टॉक में रखना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास सेल्स का डेटा होना चाहिए, मेरे पास उसकी प्राइस का डेटा होना चाहिए, मेरे पास ये डेटा होना चाहिए जो उसका प्रोवाइडर है उसके पास उसका स्टॉक है भी कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का डेटा आपके पास न्यूमरस डेटा सोर्सेज, न्यूमरस प्लेटफॉर्म से आता है। और जब वो आपके पास डेटा वेयर हाउस में आता है तो फिर उसके बाद ही आप एनालिटिक्स के थ्रू रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, जो कि ऑटोमेटेड होती हैं, वीक टू वीक हो सकती हैं, मंथ टू मंथ हो सकती हैं, डे टू डे हो सकती हैं, जो कि आपको इनसाइट्स दे सकती हैं वैल्यूएबल, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने डिसीजंस को ड्राइव कर सकते तो दानियल, में आपसे क्वेश्चन है कि फिर फर्क क्या हुआ डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में? अच्छा, तो डेटा जिस तरह मैं स्टार्ट में एक्सप्लेन कि डेटाबेस जो है ना, हमारे पास RDBMS सिस्टम्स एक अच्छा टर्म है जो एक इजी टू डिस्टिंक्ट है। वो ये है कि रो वाइज डेटा स्टोर किया जाता है उसमें, लाइक उस पर्पस होता है कि ट्रांजैक्शन स्टोर करनी है कि हुआ क्या है। लाइक मेरे पास कोई इवेंट ट्रिगर हुआ है या किसी ने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो वो ट्रांजैक्शन लेवल का डेटा है, वो इंसर्ट करते हुए मेरे लिए काफ़ी ईजी है। लेकिन जब उसको मैं क्यूरी करता हूँ या एनालिटिकल क्यूरी करता हूँ तो वो सेलेक्ट की क्यूरीज के अंदर स्लो होता है। लाइक RDBMS इज वेरी easy to write, it's very fast, it's optimized for writes, but for reading on a larger scale it is not very high performant, whereas the data warehouse जो है वो इसका opposite है। लाइक वो इंसर्ट करते हुए थोड़ा टाइम लगाता है, उसकी एक वजह है, लेकिन वो जब डेटा आप रीड करते हो तो वो काफ़ी फास्ट होता है। अब जो डेटा वेयर हाउस होता है वो जो सेम कॉलम्स होते हैं हमारे टेबल में, उसका डेटा को इकट्ठा स्टोर करता है। इसकी एग्जांपल ये है कि आप पार के फॉर्मेट फाइल जो होती है हमारे पास, या ORC फाइल फॉर्मेट होती है, ये क्या करते हैं, डेटा को आप CSV को पार्के में कन्वर्ट करते हैं आप, तो वो एक कॉलम का डेटा एक ही ब्लॉक में रखते हैं इकट्ठे, यानी सेम ब्लॉक्स में। तो जब मैं सिर्फ एक कॉलम को रीड करूंगा और उस पर ग्रेटर देन की क्यूरी लगाऊंगा या इक्वल टू की लगाऊंगा, तो वो सिर्फ कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स में सर्च करके डेटा लेकर आएगा। वेयर एज यही क्यूरी अगर मैं रोज पे लगाऊं तो वो सारे ब्लॉक सर्च करेगा, क्योंकि हर रो का डेटा डिफरेंट ब्लॉक्स में पड़ा हुआ, तो वो पूरा एक सॉर्ट ऑफ स्कैन करके लाएगा। फिर इसके लिए हम लोग आगे RDBS में कहते हैं इंडेक्सिंग अप्लाई कर दो तो हमारी वेयर की क्यूरीज फास्ट हो जाती हैं। इट इज़ गुड, लेकिन एनालिटिकल क्यूरीज तक नहीं पहुंच सकता। फिर डेटा वेयर हाउस में आगे लाइक स्नोफ्लेक की एग्जांपल है, तो इसमें क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है कि यानी आप सेम नंबर ऑफ जो कीज आ रही हैं या सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल A50 के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सेम क्लस्टर में इकट्ठे पड़े होंगे, एक ही फाइल में पड़े होंगे। तो जब आप डेटा रीड करोगे तो वो थोड़े नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीड करेगा IO, और प्रोसेस भी थोड़े नंबर ऑफ रिकॉर्ड करेगा। तो ये काइंड ऑफ बड़ी बड़े स्केल के ऊपर जाते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सो इन दैट टर्म ऑफ केस एनालिटिकल पर्पस के लिए या सेलेक्ट की क्यूरीज के लिए आपको डेटा वेयर हाउस की तरफ जाना पड़ता है। हाँ, डेटा वेयर हाउस टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना। डेटा वेयर हाउस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है, डेटा वेयर हाउस लाइक एक फुल सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है। लाइक इसमें कंप्यूट भी है, इसमें स्टोरेज है। एक और बेनिफिट ये है कि आजकल जो क्लाउड के अंदर हमारे पास ये आ रहे हैं डेटा वेयर हाउसेस, इसमें स्टोरेज अलग कर दी गई है, कंप्यूट अलग कर दी गई है। जबकि RDBMS में क्या होता है कि वर्चुअलाइजेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि VMs वगैरह, उसमें सेम VM के ऊपर ही डेटाबेस है, सेम VM के ऊपर ही स्टोरेज है, सेम VM के ऊपर ही कंप्यूट है, तो सेग्रीगेशन नहीं है। तो अब क्लाउड जो है वो क्या करता है, डेटा को पार के फाइल्स के अंदर एक चीप स्टोरेज में स्टोर करता है। जब क्यूरी चलती है तो वो अपने प्रोसेस या अपने मशीन लॉन्च करके उस स्टोरेज से डेटा जितने एफिशिएंट वे में रिट्रीव हो सकता है या कितनी कम कॉस्ट में, वो उसके ऊपर अप्लाई करता है। तो ये थोड़ा बेनिफिट है इसका। जबरदस्त। लेकिन this brings to another question, then what is data lake then? Yeah. So डेटा लेक ये है ना कि जिस तरह तैमूर ने कहा था ETL,
एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। अब डेटा लेक में क्या होता है, डेटा लेक में उन्होंने रियलाइज किया यार डेटा वेयर हाउस में मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, डेटा का स्केल भी ज़्यादा है और डेटा बहुत सारा है, क्या करें, इतना ज़्यादा स्टोरेज हम कैसे यूज़ करें, डेटा यूज़ भी होने वाला है टू बी ऑनेस्ट, लाइक टेराबाइट्स का डेटा है, इसको मैं डेटा वेयर में लोड करूँ और बहुत एक्सपेंसिव है। उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट यूज़ अ चीप स्टोरेज सर्विस, एंड देन like we want to spend less on storage but for compute we have some budget, so उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक S3 की एग्जांपल लेते हैं, AWS S3 एक सर्विस है जो आपको ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पे फेमस वन, या उसमें भी उसकी काफ़ी बेनिफिट्स, उस पर हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन उसमें क्या किया लोगों ने डेटा डंप करना शुरू कर दिया, लाइक साल का डेटा, मंथ, अनस्ट्रक्चर्ड भी स्ट्रक्चर भी, किसी भी तरह का डेटा आप डाल दो, हाँ डेटा डंप करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी अपनी जॉब्स लिखी, लाइक किसी ने स्पार्क में लिखी, किसी ने ग्लू में लिखी, किसी ने इवन के लाइक रेड, जिस तरह स्नोफ्लेक डेटा वेयर हाउस है इस तरह AWS का एक रेड शिफ्ट भी है, किसी ने रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम यूज किया तो डेटा लेक से डेटा रीड कर लिया। अब हुआ क्या, डेटा पड़ा हुआ है, डेटा मैं रैम में लोड नहीं है, डेटा स्टोरेज में पड़ा हुआ है, जिसको जिस डेट का डेटा चाहिए वो डेटा उस फोल्डर में जा जाकर वो डेटा अब डेटा लेक ये है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास पैसे टू बी ऑनेस्ट बहुत बचते हैं, लाइक मैं एक कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ, उनका डेटा लाइक पेटाबाइट में उनका डेटा लेक था, पेटाबाइट के अंदर लाइक 1.2 पेटाबाइट उनका टोटल था, हमने निकाला था ये 2018 से लेकर 2023 आज तक के महीने का जो स्केल था वो 1.2 पेटाबाइट था, तो वो लोग डेटा लेक यूज कर रहे थे। और उनका मैं हैरान ये था कि वो अपाचे स्पार्क यूज कर रहे थे और उनका जो मंथली बिल था वो $75,000 से ऊपर नहीं गया, क्लाउड बिल इस डेटा लेक का। हाँ, लेकिन उसमें थोड़े से इश्यूज हैं उसके अपने भी, लाइक डेटा लेक के अंदर आपको अगर स्पार्क सपोज की एग्जांपल लेते हैं तो ऑन स्पॉट इंस्टेंस पे अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई स्पार्क की लिखा है कोड करना पड़ता है उसको मैनेज करना, तो उसकी जो गवर्नेंस है वो थोड़ी सी मुश्किल है या एक्सपेंसिव कह सकते हैं, लेकिन उसके आगे फिर मैकेनिज्म्स हैं, यानी आपको डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि लाइक कौन सा यूजर या कौन सा प्रोसेस इस डेटा लेक को एक्सेस कर सकता है या फिर एक डेटा लेक के किस पोर्शन को एक्सेस कर सकता है। फिर इसके ऊपर बहुत सारी सर्विसेज बन गई हैं, अपाचे आई थिंक ह्यू नाम है उसका, डेल्टा लेक है। अब डेल्टा लेक में प्रॉब्लम ये है कि डेटा लेक में एक फाइल सपोज आपने एक फाइल अपलोड किया अरसलान और उस फाइल का नया वर्जन आ गया और आपने उसको रिप्लेस कर दिया, सो देयर इज नो टाइम ट्रैवल, लाइक स्नोफ्लेक में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं आप, आपका एक टेबल था वो डिलीट हो गया या इस तरह ना, आप उसको एक प्रीवियस वर्जन के ऊपर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। डेटा लेक में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर उन्होंने डेल्टा लेक बनाई। अब डेल्टा लेक क्या करती है, लाइक वो कीप ट्रैक्स ऑफ द फाइल वर्जन एंड देयर कंटेंट्स, लाइक सपोज आपने एक फाइल रिप्लेस कर दी ना तो वो वर्जन 1 की बजाय वर्जन 1.1.1 हो जाएगा, तो आप ट्रैवल थ्रू टाइम यानी पिछले वर्जन पे इजीली शिफ्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन है, मैंने कहा थोड़े से ये मॉडर्न कीवर्ड्स भी इन कर दूं, जबरदस्त। या नहीं, आई थिंक जो हमारे न्यू कमर्स हैं और इक्वली जो करंट जॉब कर रहे हैं उसमें दे आर गेटिंग एडवांटेज फ्रॉम दिस डेफिनेटली। सो मूविंग ऑन, if you remember like where we worked, we also had a data lake in HDFS, right? So that was the same thing. Yes, I remember that. Yeah. Moving onwards, so सजील, हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात की, तो इसके बारे में कुछ बताएं व्यूअर्स को। यार डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग देखो, अब बेसिकली होता ये है कि वॉल्यूम ऑफ द डेटा इज बेसिकली इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, राइट? तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है उतनी ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बेसिकली इंट्रोड्यूस इसीलिए की कि आप इस वॉल्यूम को हैंडल कर सको, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इटसेल्फ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी एक चीज़ है कि आप जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करो कि आप प्रोसेसिंग जो है उसको पैरेलल कर सको, ताकि जो भी चीज़ आपने एक्सट्रैक्ट करनी है या कोई भी चीज़ आपने फेच करनी है फ्रॉम द डेटाबेस, वो उसके ऊपर पैरेलली प्रोसेसिंग हो सके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू, और वो आपको जल्द से जल्द बेसिकली वो रिजल्ट्स आपको दे सके। तो इसके साथ अगर आप बिग डाटा को ऐड करें, और तो क्या ये चीज इट्स लाइक काइंड ऑफ अ नेसेसिटी, राइट, इन बिग डाटा? या एग्जैक्टली, तो जाहिर सी बात है बिग डाटा इज व्हेन
obviously we know that के there are 3 big V's जब big data की बात आती है उसमें velocity, veracity and volume की बात आ जाती है. तो obviously जितनी ज़्यादा velocity और जितनी ज़्यादा volume से data आ रहा है हमारे पास obviously, तो उस लिहाज से फिर आपको distributed computing यूज करना necessary हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी velocity और इतनी volume में data आ रहा है, उसको आपने process करना है एक certain compute के साथ, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू ही कर सकते हो. और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या करती है? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एफिशिएंटली पैरेलली मैनेज करती है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटिंग को फास्ट कर सकते हो. राइट. और बेसिकली इसके अंदर क्लस्टर क्या, होते हैं, इस तरीके से सारी चीजें चल रही होती हैं. तो इसके अंदर क्या ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हेल्प करती हैं आपको विद टूल्स जो होते हैं? एग्जैक्टली. पायस्पार्क जो मशहूर है सबसे ज्यादा, वो इसीलिए यूज होती है कि वो पैरेलल कंप्यूटिंग यूज करती है और पैरेलल चीज़ों को प्रोसेस करती है. उसमें जो डेटा फ्रेम्स होते हैं वो पैरेलली है. तो मोस्टली पायस्पार्क का जो बूम है वो इसी वजह से है कि इट्स बिकॉज ऑफ द बिग डेटा, और वो इसीलिए है कि वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकती है और एंड इट्स क्वाइट फास्ट. राइट. Daniel bhai, do you want to add something in it with big data and PySpark? हाँ, तो बेसिकली थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा सजील की बात को. सवाल पहले हमें ये पूछना चाहिए ना कि कब हम एक डेटा को बिग डेटा कहते हैं ना. यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई तो लाइक सपोज हर कोई कहना चाहिए मेरे पास बिग डेटा है, लाइक देयर शुड बी अ थ्रेशोल्ड. सो लाइक जितनी मैंने कंसल्टिंग की है या किसी भी क्लाइंट के साथ काम किया, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये होता है उनका जो करंट एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है, क्या वो कंप्यूटर या क्या वो जो सर्वर है वो इस काबिल है इस वक्त कि वो उनका डेटा प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा. लाइक अगर वो नहीं कर पा रहा प्रोसेस, तो दैट मीन्स बिग डेटा का प्रॉब्लम. ये एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड होना चाहिए. लाइक उनकी जो ऑन साइड रिसोर्सेज है ना, वो इस सब काबिल नहीं रहे कि वो डेटा के स्केल को मैनेज कर सकेंगे. लाइक पाइथन की पांडास का एक लाइब्रेरी है, उसमें आप 1 टेराबाइट का डेटा लोड कर दो, क्या होगा? फेल हो जाएगा ना. तो अब इस चीज को प्रोसेस करने के लिए क्या, अच्छा जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी स्पार्क की ना, तो स्पार्क सिंपल क्या है, एक लाइब्रेरी है. इसका फायदा क्या है? आपके पास 3 सपोज करें ना, इसका फायदा ये है कि अब एक RDBMS सिस्टम को जब आपने स्केल करना हो या बड़ा डेटा प्रोसेस करना हो, तो आप उसकी को ज़्यादा कर दो, रैम ज़्यादा कर दो या हार्ड डिस्क ज़्यादा कर दो, ऐसे ही. लेकिन अब स्पार्क का बेनिफिट ये है कि आपके पास एक मशीन पर स्पार्क इंस्टॉल किया हुआ है और मल्टीपल मशीन जो आपको जो स्पार्क इंस्टॉल कर लो. अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. सजील ने जिस तरह बोला कि डेटा फ्रेम है, एक डेटा फ्रेम जब क्रिएट होता है वो क्या करता है, रन टाइम के ऊपर पार्टीशन डेटा के छोटे छोटे ना हिस्से बना देता है. वो सारे हिस्से स्प्रेड हो जाते हैं तमाम VMs के ऊपर. तो एक VM के ऊपर सपोज करें 4 कोर है, 8 कोर है, वो 8 कोर्स 8 पार्टीशनों को पैरेलल में प्रोसेस कर रही होती हैं. एक तो पैरेलल हो गया, विद इन मशीन पैरेलल हो गया, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल कंप्यूटिंग कर रही है. तो स्पार्क की ये पावर है. असल पावर क्या है स्पार्क की? जो बंदा पाइथन के बैकग्राउंड से आ रहा है ना, लाइक जिस डेटा पे काम किया, उसके लिए स्पार्क एक नेमत इस तरह है कि वो डेटा फ्रेम की API जिस तरह पांडास में आप यूज कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, या वो इवन के स्पार्क अगर आप SQL लिख सकते हो, ऑलमोस्ट सिंटैक्स भी सेम ही है. एग्जैक्टली. आपको यानी कोड वंस रन इट एवरीवेयर. जबरदस्त. सो अगर हम सॉरी, अब जब हम बात कर ही रहे हैं लैंग्वेजेस की, तो जो मेजर जो लैंग्वेजेस हैं, ऑब्वियसली पायस्पार्क की हमने बात की, तो पाइथन की बात कर लेते हैं और SQL की बात कर लेते हैं. तो पहले SQL की बात करते हैं दनियाल भाई. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नए लड़के आते हैं, नया जो टैलेंट आता है, वो पहले SQL पढ़ता है, फिर वो उसको नज़र आता है NoSQL, फिर MySQL, फिर PostgreSQL, उसके अलावा SQL सर्वर. तो इन सब में क्या फ़र्क है? First of all, obviously SQL versus NoSQL, then the other terms that I have used. So basically ना, जो NoSQL है, इसमें शार्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी जो कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है इन दोनों की जो बेसलाइन है. NoSQL से मुराद ये है कि नॉट ओनली SQL, लाइक NoSQL से मुराद ये नहीं है कि SQL है ही नहीं, और जो SQL है उसमें मैंने पहले जिस तरह RDBMS की एग्जांपल है, पोस्टग्रेस एक RDBMS है, और मैं पर्सनली लाइक सजेस्ट ये करूँगा कि MS SQL, MariaDB, इनसे निकलो. पोस्टग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस है, लाइक आपको स्टार्ट ही वहीं से करना चाहिए. वेब एप्लीकेशन, बहुत सारे डाटा इंजीनियर्स आपसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं दनियाल भाई. एग्जैक्टली, करें. इख्तिलाफ जरूरी है.
सब इख्तलाफ ज़रूरी है। और अच्छा, नो सीक्वल की बात कर रहे थे, तो उसमें लाइक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह होता है कि डेटा का जो स्टोरेज फॉर्मेट होता है वो जेसन, इंटरनली वो बीसॉन कहते हैं उसको। तो जेसन की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, उसमें इस तरह की रिलेशनल एंटिटीज नहीं होती जिस तरह मैंने आपको बताया, लाइक उसमें डेटा सेमी स्ट्रक्चर स्टोर होता है। जेसन एक सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट है हमारे पास ना। ठीक। हाँ जी, तो उसमें डेटा इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से मुराद एक प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना, चाइल्ड एट्रीब्यूट्स, वो उसके अंदर होंगे। अब यूजर है ना, उसके इंटरनल एक की बनेगी ऑर्डर्स के अंदर उसके सारे ऑर्डर्स पड़े हुए होंगे, और उसमें लाइक आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है। अब आरडीबीएमएस में इशू क्या है कि आपको उसको वर्टिकल स्केल करना पड़ता है हमेशा। ज्यादा क्यूरीज आई रैम बढ़ा दो, ज्यादा क्यूरीज आई कोर्स बढ़ा दो, ज्यादा क्यूरीज आई स्टोरेज बढ़ा दो, लाइक आरडीबीएमएस में ये चल रहा है आजकल। ठीक है, जो हमारे पास नो सीक्वल है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, यानी आपको ज्यादा इशू आ रहा है ना यार, एक सर्वर बढ़ा। आप एक मशीन को कितना वर्टिकल स्केल करोगे, एक लिमिट आएगी, ब्रेक हो जाएगा वो। आप नो सीक्वल ने क्या कहा यार, मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, फिर उन्होंने कहा यार हॉरिजॉन्टल तो हो गया, आप डेटा को यूजर क्यूरी करता है, वो रिक्वेस्ट मैंने किस सर्वर को देनी है या किस डिस्ट्रीब्यूटेड जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है किसको देनी है, ये नहीं, सो कैसे पता चलेगा कि मेरा रेलेवेंट या मेरी क्यूरी की रेलेवेंट डेटा किस सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए शार्डिंग है, फिर शार्डिंग के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, हैशिंग होती है, राउंड रॉबिन होती है। तो नो सीक्वल स्केलेबल है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबल है। जो आरडीबीएमएस है या सीक्वल टेक्नोलॉजीज हैं ये वर्टिकल स्केलिंग है। इवन के असलान एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हमारे पास जो डेटा वेयर हाउसेज हैं, ये आपके रेडशिफ्ट हो गया या स्नोफ्लेक हो गया, ये क्लस्टर ऑफ पोस्टग्रेस सीक्वल के सर्वर्स हैं। आप ये बेशक सर्च कर सकते हैं, यानी वो पोस्टग्रेस जो हमारे पास सर्वर्स हैं उनका क्लस्टर बना हुआ है, वो डेटा पैरेलली कंप्यूट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक वो है इस लिहाज से। लाइक मैंने जितने भी बड़ी कॉर्पोरेट लेवल पे देखे हैं, पोस्टग्रेस बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इवन किसी भी में आप लिखें तो काफ़ी अच्छा आप पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ऑल राइट। आगे चलते हैं विद क्वेश्चन। सो बेसिकली सजील आप बताएंगे फिर बेसिकली एक जो लेमन टर्म में जब हम देखते हैं तो बेसिकली पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस भी हो जाता है। सो व्हाई there is a need of SQL and what is the basic difference? हम कह सकते हैं कि this is the difference between Python and SQL. अच्छा, बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, पाइथन जो है वो बेसिकली आप सोर्सेज से इंटरेक्ट करने के लिए, एपीआई से डेटा फेच करने के लिए, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हो। लेकिन जो डेटा की एक डिफाइंड लैंग्वेज है और जो बेस्ट प्रैक्टिस है और जो यूज होती है मोर देन 90%, वो एसक्यूएल है। ठीक है, एसक्यूएल बेसिकली किस लिए यूज होती है? एसक्यूएल यूज होती है टू इंटरेक्ट विद स्ट्रक्चर्ड डेटा जो आपके पास टेबल्स में या डेटा वेयरहाउस में या डेटाबेस में होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आप एसक्यूएल के थ्रू ही इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पाइथन के थ्रू भी इंटरेक्ट करना है तो आपको पाइथन के कोड के अंदर भी एसक्यूएल ही लिखनी पड़ती है, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू इंटरेक्ट विद स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज अवेलेबल इन द डेटाबेस और इन द डेटा वेयरहाउस। ऑलराइट, तो डेटा से इंटरेक्ट करना, स्ट्रक्चर्ड डेटा से इंटरेक्ट करना है, उसके लिए एसक्यूएल है। उसके अलावा जो भी आपने चीज करनी है, आपने डेटा फेच करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटा को कहीं और स्टोर करना है, ठीक है, उसके लिए आप पाइथन की स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो या कोई और लैंग्वेज की स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो। मोस्ट प्रेफरेबली डेटा इंजीनियरिंग में पाइथन चलती है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास रिलेवेंट और फ्रेमवर्क्स हैं जो कि पाइथन को काफी हेवीली यूज करते हैं। राइट। स्काला भी लाइक कुछ कंपनी या स्काला काफी प्रेफर की जाती है, और स्पार्क में अगर है तो पाइथन भी ठीक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस ज्यादा स्पार्क की होती है वो स्काला में लाइक प्रेफर की जाती है, क्योंकि स्काला का जो इंटरनल कोड जो लिखा हुआ है ना वो स्काला के अंदर वो फिर जेवीएम में कन्वर्ट होता है हडूप के लिए, और लाइक वो सेपरेट एक प्रोसेस है। लेकिन स्पार्क की अगर असल परफॉर्मेंस किसी ने देखनी है तो स्काला में लाइक कोड कर ले। राइट। सो बेसिकली आगे चलते हैं और फिर हम ये देख लेते हैं कि फिर पाइथन और पाइस्पार्क में क्या फर्क आएगा। खैर ये एक्सप्लेन कर चुके हैं वैसे दानियल, बहुत सिमिलर सी चीज़ है। पाइस्पार्क में भी बेसिकली पाइथन ही यूज होती है। ठीक है, पाइथन एक जेनेरिक लैंग्वेज है
और पाइथन की PySpark बेसिकली एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिसको आप बेसिकली यूज करते हैं, जैसे pandas हो गया और भी डिफरेंट लाइब्रेरीज हो गई। तो PySpark इज रिटन ऑन पाइथन और इसीलिए इसको PySpark कहते हैं। और बेसिकली आपने जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करनी है, इस तरीके की चीजें करनी है, तो आपको उस टाइम पे PySpark यूज करनी होती है। और वो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग के अंदर आप पाइथन का कोड लिख रहे हो तो इसलिए वो PySpark है। राइट। दनियाल। बेसिकली पाइस्पार्क ने एक रैपर टर्म यूज की जाती है। तो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि स्पार्क स्काला में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने देखा लाइक मेजोरिटी ऑफ जो डेटा साइंटिस्ट हैं या जो प्रोसेसिंग करते हैं उनका पाइथन में ज़्यादा लाइक टॉप पे ट्रेंड चल रहा था। तो जो जिन लोगों ने डेटा ब्रिक्स बनाई है, तो इन लोगों ने ही स्पार्क इनिशियली डेवलप किया था बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन इन्होंने जब लाइसेंस अपाचे का वो ओपन सोर्स कर दिया तो उनको लाइक अफसोस हुआ कि यार ये तो बहुत ही एक जबरदस्त बन सकता था। फिर उन्होंने लाइक डेटाब्रिक्स की सर्विस रिलीज की क्लाउड की, और वो फिर स्पार्क काफ़ी सारी ना एक्सटेंशंस देते हैं वो लोग। जो काम आराम से उनसे हम लोग उधर कर सकते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है अमूमन इधर। तो स्पार्क एक ना लाइब्रेरी है जिसको एक्सेस या रन करने के लिए हमें पाइथन चाहिए होता है। यानी उसको एक्सेस करने के लिए उसकी पावर को या उसको उसके इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए, या पाइस्पार्क एक लाइब्रेरी है जो पाइथन में कंपाइल होती है। और फर्दर फिर वो कोड जो पाइथन का है वो स्काला में कन्वर्ट होता है, वो कोड फिर जेवीएम में जाता है, वो फिर एग्जीक्यूट होता है। पाइथन ह्यूमन की नजदीक लैंग्वेज है जो पाइस्पार्क को यूज करते हुए डेटा को प्रोसेस करती है। राइट। ओके, सो अब जरा थोड़ा और कुछ जो टूल्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज एयरफ्लो और सेकंड इज स्नोफ्लेक। दैट आई वुड लाइक सजील टू एक्सप्लेन स्नोफ्लेक बिकॉज वो काम भी करते हैं, उन्होंने शुरू में बताया भी था। सो दयाल, आप एयरफ्लो का डिस्क्राइब करें और सजील विल डिस्क्राइब स्नोफ्लेक। So for Airflow, so basically हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, जॉब ऑर्केस्ट्रेशन। सो ऑर्केस्ट्रेशन और एक जॉब ऑर्केस्ट्रेशन किस तरह हमारे पास ना एक पाइपलाइन में आती है। मेरे पास एक ETL का टास्क है, सपोज मैंने डेटा एक सोर्स से लिया, लोड कर दिया। अब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ कंप्यूटर इंजीनियर मैं ये तो नहीं करूँगा डेली बैठ के वही स्क्रिप्ट किया, उसको रन किया, दोबारा बार रन किया। जैसे 12 बजेंगे मैं घड़ी को देख रहा हूँ, जैसे 12 बजे मैंने रन कर देना, लाइक इट डजंट मेक सेंस। और एज अ डेटा इंजीनियर आपको बहुत सारे ETL के प्रोसेसेस को देखना पड़ता है। लाइक ये नहीं होता कि आपको एक प्रोसेस दे दिया जाएगा ETL का, तो आप ये 20-30 और डेली के बेसिस पे इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आपको प्रीवियसली ऑटोमेट करना होता है डेटा फ्लो। तो उस डेटा फ्लो की ऑटोमेशन एट अ स्पेसिफिक स्केड्यूल, और उस डेटा फ्रेम या डेटा सेट की या जो डिलीवरी है, इसको डिलीवरी के टर्म यूज किया जाता है हमारे पास। तो कि उस डिलीवरी के को डिलीवर करने के जो स्टेप्स हैं उसको हम लोग कैसे ऑटोमेट करें, तो उसके लिए एयरफ्लो या इसके अलावा भी एयरफ्लो यूज किया जा सकता है। इस तरह के हमारे पास कोई ऐसे टास्क जो हमने ऑटोमेट किए हैं। मैं एग्जांपल से लेकर चलूंगा। मेरे पास सपोज करें स्पोर्ट्स का या डेटा है, हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत फेमस है। अब डेली मुझे पता है कि रात को 12 बजे क्रिकेट का डेटा मेरे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ है या डेटा है वो आना है, और वो मैंने उसको प्रोसेस करना है। मैंने बताना है कि भाई आज के दिन टॉप प्लेयर कौन था। मैंने कुछ एवरेज निकाली और रन रेट निकाला और नंबर ऑफ विकेट्स निकाल के एक इन द एंड मैंने एक रैंक लगा दिया, भाई ये प्लेयर एक्स जो है ये बहुत टॉप पे जा रहा है, और वो सेव कर दिया। अब डेली के बेसिस में ये करने बैठ जाऊँ और मैं तो पागल हो जाऊंगा टू बी ऑनेस्ट। तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हम एयरफ्लो की बताते हैं कि भाई ये स्टार्ट इस टाइम पे होना है, लाइक 12 बजे तुमने स्टार्ट हो जाना है, ये डेटा का सोर्स है, ये लिंक है, डेटा रीड करना है, इसके ऊपर तुमने पाइथन के थ्रू डेटा रीड के एवरेज निकालने हैं, ये कॉलम पकड़ना है, ये उसमें करने के बाद तुमने इसको डिलीवर करना है, और तुमने ये डेली चलना है। तो जब मैं ये कर दूंगा मैं रिलैक्स हो गया। अब मेरी जॉब ऑर्केस्ट्रेट हो रही है, रन हो रही है डेली के बेसिस पे। तो ये एयरफ्लो बेसिकली एक अच्छा इसमें एक ये है कि यूनि डायरेक्शन वर्कफ्लो है। दैट ये मीन्स नहीं है कि आपके पास थर्ड स्टेप पे आकर ना आप वापस नहीं आ सकते पिछले स्टेप पे। आपने अगर एक स्टेप देखा तो आपने आगे के जाना होगा। इसको कहते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि एसाइक्लिक
से मुराद कि वो साइक्लिक नहीं हो सकता, यानी थर्ड स्टेप वापस 2 में नहीं आ सकता या सेकंड स्टेप वापस 1 में नहीं आ सकता, इसको स्ट्रेट ही जाना है। सो बेसिकली एक वर्कफ्लो एयरफ्लो का बेसिक यूज केस ये है। ऑल राइट, जो ऑल राइट। सो सजील, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, एयरफ्लो और फिर स्नोफ्लेक? या थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। अब बेसिकली डेटा ऑर्केस्ट्रेशन तो यही हो जो दानियाल ने बोला कि आप बेसिकली जॉब किस टाइम पे चल रही है, ये सारी चीज़ें होती। तो बेसिकली इसमें 4-5 में जो कंपोनेंट्स मैं जिस बेस पे मैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स को रखूंगा वो यही होती। एक तो कॉस्ट आ जाती है आपकी। एयरफ्लो जो है वो ओपन सोर्स है। उसके अलावा जो है आपकी जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल में चीज़ें होती हैं, और जो होनी चाहिए वो ये है कि उसमें डिपेंडेंसी है कि डिपेंडेंसी किस तरीके की है। आप टैग के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो, टास्क के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा फेलियर पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। फेलियर पे आपको ईमेल अलर्ट आनी चाहिए, किन किन लोगों को ईमेल अलर्ट आनी चाहिए। फेलियर होता है तो उसको रीरन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा पाइपलाइन एक पूरी जो आप बेसिकली बनाते हो वो एक पूरी डेटा ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर आती है, जिसको एयरफ्लो में टास्क कहते हैं। उसमें बेसिकली यही है कि आपके पास मल्टीपल पाइथन स्क्रिप्ट्स हैं जो कि एक सीक्वेंस में चलनी है। तो वो जो सीक्वेंस की डिपेंडेंसी है वो आप डेटा ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स के अंदर जो है वो सेट कर रहे होते हो। तो ये 4-5 मेजर चीजें होती हैं जो एयरफ्लो में, जिसके लिए एयरफ्लो बेसिकली यूज हो रहा होता है। इसमें मोस्टली ऑटोमेटेड प्राइमरीली इसके अंदर इतना ईमेल्स? बूस्ट इसीलिए आया कि ऑटोमेटेड ईमेल्स हो गई। इसमें बेसिकली मोस्टली जो बूस्ट आया है वो इसीलिए आया कि इट इज ओपन सोर्स, और ओपन सोर्स है तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी हट जाती है राइट। बस। लेकिन ये है कि ये कोड इंटेंसिव हो जाता है थोड़ा, कि आपको पाइथन में कोड लिखना पड़ता है जिसके थ्रू आप टैग्स क्रिएट करते हो, और वो टैग्स पर रन होते हैं और आपकी जॉब जो है वो कम्प्लीटली ऑटोमेट हो जाती है। और उस ऑटोमेशन में ये भी होता है कि जब फेलियर्स आते हैं तो आपको ईमेल अलर्ट चली जाती हैं। फेलियर्स की ये भी होता है कि आपका फेलियर कौन से लेवल का है, और उस फेलियर पे रीरन भी हो जाते हैं टास्क। उस फेलियर पे ये भी होता है कि आपकी डिफरेंट लेवल ऑफ सपोर्ट को इंगेज किया जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप सेट कर सकते हो एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल। और थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा भाई, हम लोग लाइक जो सुनते हैं ना जॉब ऑटोमेशन की जॉब्स आ रही होती हैं, ऑटोमेशन की जॉब्स आती हैं, लाइक जिसमें ऑटोमेशन लिखा होता है, तो उसमें मेजोरिटी आप ये रख सकते हैं जहन में कि एयरफ्लो यूज हो रहा होता है। और सेकेंडली जिस तरह से जिल ने लाइक कहा, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा ये है कि एक डैग होता है, यानी जो एक वर्कफ्लो है वो दूसरे वर्कफ्लो को भी ट्रिगर कर सकता है, ये इसमें होता है। लाइक थोड़ा सा ये इस तरीके से ना फ्लेक्सिबल है इन मामलात में। एक मतलब टास्क है तो वो पैरेलल में भी रन हो सकता है। अगर आप सपोज एक फ्लो है ना, एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, उसको आप दो में डिवाइड करते तो वो पैरेलल में रन हो शुरू हो जाती है। तो आप इसको इस तरह सोच सकते हैं कि एक स्ट्रीम ऑफ वाटर सीधी जा रही है। राइट, राइट। So basically हमें एक प्रॉपर एक एक रास्ता मिल जाता है, as the name indicates, airflow. So basically that from where step by step we can make the pipeline, right? टास्क एग्जीक्यूट करते हैं अपनी। या Right. Okay. And Sajil, moving onwards, Snowflake. Yeah, Snowflake. It's a very good name, by the way. It's a very fancy name, I would say. हाँ, वो लॉजिकल नेम है yeah, भाई, लॉजिकल नेम है, काफी इस डोमेन के रिलेटेड है। Right. yeah. So Snowflake जो है वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटा वेयरहाउस हो रहा है आजकल। बड़ा रैपिडली ग्रोइंग है, बहुत सारे नए फीचर्स आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। ये लोग डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, सोच रहे हैं। इनका थिंक टैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। Basic नए नए purpose क्या फीचर्स है? में, हाँ, तो इसका बेसिकली पर्पस ये होता है, इट्स बेसिकली क्लाउड बेस्ड डेटा वेयरहाउस। इसमें आप जो है वो अपने जितना भी आपका जो डेटा होता है डिफरेंट सोर्सेस से, वो आप आके स्नोफ्लेक के ऊपर एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसमें बेसिकली थोड़ा सा हाइब्रिड सा डिज़ाइन होता है, हाइब्रिड सा आर्किटेक्चर होता है इसमें। बेसिकली इसमें इसको बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ शेड नथिंग एंड शेड दस आर्किटेक्चर, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन दोनों के बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा आपकी डिफरेंट वेयर हाउसेज होते हैं, डिफरेंट कंप्यूट्स होती हैं, डेटा बहुत इजी टू मैनेज होता है, स्कीमास बने हुए होते हैं, डिफरेंट टेबल्स होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे न्यूमरस पर्क्स होते हैं। आप हिस्ट्री देख सकते हो, आपने कौन कौन सी क्यूरीज एग्जीक्यूट की हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन स्कीमा में बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, प्रीवियस डेटा पे जा सकते हो। ठीक है, ये वो सारे पर्क्स हैं जो आपको नॉर्मली पहले नहीं मिलते होते थे। ये और बड़ा इस इंटरेस्टिंग वजह आपने से टर्म
यूज किया। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। टाइम ट्रेवल एक बड़ी मजे की टर्म आपने यूज किया, उसको भी जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली ठीक। तो ये वो सारी चीजें जो कि जिसकी वजह से स्नोफ्लेक बहुत बूस्ट है। मैं एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ जो कि मैं रिसेंटली पढ़ रहा था। जो चैट जीपीटी है हमारा, वो भी स्नोफ्लेक का डेटा वेयर हाउस यूज करता है फॉर इट्स डेटा। वेरी नाइस। तो या तो ये वो सारी चीजें होती हैं। खैर आपने टाइम ट्रेवल की बात की, तो टाइम ट्रेवल जो है, लेट्स से मैं इसको कंपेयर करता हूँ टेराडेटा के साथ। जब मैं टेराडेटा में काम कर रहा था, तो जब भी हमें प्रीवियस डेटा ऑफ टेबल चाहिए होता था, वी वुड हैव टू ओपन अप अ टिकट विद टेराडेटा टीम, जो कि हमें विद इन 7 days जो है वो पुराना डेटा आपको रिकवर करके देती थी। लेट्स से कुछ भी हो गया, डेटा ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया, या कोई भी मिसअप हुआ, आपका डेटा आपसे मिसमैनेज हुआ, तो वो आपको फिर टेराडेटा के साथ सपोर्ट टिकट एंगेज करना पड़ता था, जिसको फॉलो अप करना पड़ता था, और आप डेटा उनसे रिट्रीव करते थे। बट स्नोफ्लेक ऑब्वियसली catered दिस प्रॉब्लम, और उन्होंने उसको सोल्यूशन ये दिया कि उन्होंने एक टाइम ट्रैवल की एक फंक्शनैलिटी रखी, जिसको आप इनेबल करते हो इन योर स्कीमाज एंड योर टेबल्स, जिसके थ्रू आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक पीछे जा सकते हो टेबल में, जो कि वो डेटा उस वक्त पड़ा होता है। लेट्स से मैंने कल के 6 बजे तक का जो मैं एक क्यूरी लिखूंगा, सिंपल सी क्यूरी है, एक लाइन में लिखी जाती है, उसके थ्रू मैं ये चेक कर सकता हूँ कि कल मेरे पास 4 बजे कितना डेटा था और कौन सा डेटा था और क्या डेटा था। तो ये वो फंक्शनैलिटी है जो कि स्नोफ्लेक प्रोवाइड करता है। 90 डेज तक का टाइम ट्रैवल, ये भी पैकेजेस टू पैकेजेस डिपेंड करता है, 90 डेज का टाइम ट्रैवल ऑफर करता है। उसके अलावा फिर जब आपके पास डेटा उसके फर्दर डाउन द लाइन आपको जब चाहिए हो, तो फिर आपको फिर उनके साथ टिकट ओपन करना पड़ता है। लेकिन 90 डेज इज मोर देन इनफ बफर टू हैव अ सिक्योर डेटा। So Airflow or Snowflake, they are like different usage. They have different usage. हाँ 100%। अच्छा, एयरफ्लो जो है वो दैट इज प्योरली रिलेटेड टू डेटा ऑर्केस्ट्रेशन। उसने उसका काम सिर्फ ये है कि वो सिर्फ जॉब्स रन करता है। उसने क्या करना है, उसने स्नोफ्लेक की जॉब्स रन करनी है, उसने पाइथन की जॉब्स रन करनी है। लेट्स से मेरे पास इसको एक एंड टू एंड बना लेते हैं। मेरे पास एक पाइथन जॉब है, ठीक है, जो कि डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही है, और उसके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक डेटा की फाइल आ गई, ठीक है। वो डेटा की फाइल मैंने एक लेट से क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के ऊपर रख दी, विच कुड बी S3 बकेट और एनी अदर क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। उस S3 बकेट से डेटा लोड होना है अब स्नोफ्लेक के डेटा वेयरहाउस में। अब वो कैसे लोड होगा, उसके लिए एक SQL की स्क्रिप्ट होगी। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक पाइथन की स्क्रिप्ट आ गई जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही है, उसके बाद एक SQL की स्क्रिप्ट आ गई जो डेटा लोड कर रही है फ्रॉम S3 बकेट टू डेटा वेयरहाउस, जो कि SQL में लिखी हुई है। और वो कौन से डेटा वेयरहाउस में लोड कर रही है, स्नोफ्लेक बेस्ड डेटा वेयरहाउस। उसके बाद क्या जॉब चल रही है, उसके बाद जॉब चल रही है लेट्स से कोई डेटा एनालिटिक्स की, या जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो सारी जॉब चल रही है। तो ये तीन जॉब इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये एक सर्टेन पैटर्न में चलेंगी, क्योंकि पहले पाइथन की जॉब चलेगी ताकि हमारे पास फाइल आ सके। तो वो एयरफ्लो में ये जो डिपेंडेंसी है और ये जो टास्क का जो ऑर्डर है, ये सारा डिफाइन होता है एयरफ्लो में। और जो डेटा स्टोर होता है, ये वो सारी चीजें जो है वो स्नोफ्लेक के अंदर हो रही होती है। Nice explanation. बेसिकली लाइक एयरफ्लो आपकी तरफ से ना रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है, यानी वो क्यूरी एग्जीक्यूट स्नोफ्लेक पर ही होगी, लेकिन वो आपकी तरफ से सबमिट कर रहा है। अब पाइथन है तो वो पाइथन रन लोकली होगी, लेकिन वो डेटा वहां से ला रहा है। सो बेसिकली एयरफ्लो जो है वो एक वर्क फ्लो बना के देते हैं, आपकी तरफ से टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। यानी स्नोफ्लेक की एपीआई होगी, उसको वो सीक्वल क्यूरी सबमिट होगी, वो सीक्वल क्यूरी उधर रन होगी, जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो फिर एयरफ्लो के पास आएगा। यानी वो सॉर्ट ऑफ आपकी तरफ से एक फ्लो बना रहा है। All right. So moving onwards, आप लोग थोड़ा बताएं क्लाउड के बारे में, कौन सी मेजर कंपनीज हैं जो कि इसमें they are playing their part, and what is the difference between them? There's a famous thing called S3 bucket, अभी हमने बहुत दफा डिस्कस किया उसे। So yes, starting with Danial. सो बेसिकली ना तीन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आजकल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हैं। एक ऑन प्रेमिसेस, लाइक वो सारा सिस्टम बाय करके, हार्डवेयर बाय करके अपने पास रखो हो, तो उन्होंने प्री प्लान लाइक हमारे इतने रिसोर्सेज बढ़ेंगे, और वो पहले से उन्होंने लाइक 80 मिलियन 50 मिलियन के सर्वर बाय करके रखे होते हैं, जो यूज हो भी रहे होते, नहीं यूज हो रहे होते, उस प्रोसेसिंग चल रही होती है, वो ऑन प्रेमिसेस होता है। जिस तरह टेराडेटा का एग्जांपल है, टेराडेटा ऑन प्रेमिसेस है, उन्होंने अपने सर्वर रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आउटसोर्स किए हुए हैं आप लोगों को, उनको सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सेकेंडली एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। एक है क्लाउड,
क्लाउड क्या करता है, वो क्लाउड वाले कहते हैं यार अपने सर्वर ना खरीदो, मेरे यूज़ करो जितने चाहिए, उस हिसाब से पे करो जितना यूज़ करो, तुम पहले से ही साल के $80 मिलियन ना लगाओ, तुम स्टार्ट करो जितना तुम्हारा यूज़ है। अब इसकी क्लासिक एग्जांपल है पे एज यू गो। हाँ, पे एज यू गो। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ने कहा यार कि सारा कुछ तो हम क्लाउड पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमारा जो डेटा है वो काफ़ी प्राइवेट है और हम लोग नहीं करना चाहते, वी डोंट ट्रस्ट, लाइक वट एवर द रीज़न। उन्होंने कहा अच्छा हम एक और काम करते हैं, आप अपना जो डेटा प्रोसेस होता है प्राइवेट PII डेटा, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन या कुछ इस तरह का डेटा, वो आप लोकली प्रोसेस कर दो। उसके अलावा जो डेटा आर्काइवल वाला है या डेटा जो नॉन PII डेटा है वो आप हमें दे दो, हम प्रोसेस करके आपको दे दो। उन्होंने एक ब्रिज बना लिया, तो इसको हाइब्रिड आर्किटेक्चर कहते हैं। फिर जो क्लाउड है इसके अंदर भी टाइप्स हैं, लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS, ठीक है, तो प्रोडक्ट एज अ सर्विस। फिर जो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आप सिर्फ इंटरफेस देखते हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना पड़ता, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आ जाती है, जिसकी क्लासिक एग्जांपल स्नोफ्लेक है। लाइक इसमें आपको कोई आर्किटेक्चर मैनेज नहीं करना पड़ता और आप इसके अंदर प्रॉपर डेटा इंसर्ट करो, डेटा क्वेरी कर रहे हो, बस आप अपना काम कर रहे हो। फिर IaaS होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। फिर थोड़ा सा क्लाउड का सेकंड लेवल है जिसके अंदर आपके पास AWS है, बाकी AWS भी आपको SaaS सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन IaaS प्रोवाइड करता है। यानी AWS आपको VMware की सपोर्ट देता है, यानी आप अपना हाइपरवाइजर स्पिन अप करो, उसके अंदर VMs बनाओ, यूजर को दो, तो वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज कर रहे हो क्लाउड के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है आपके पास। तो अब क्लाउड क्या होता है, वो सर्विस जो आपको ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी क्लासिक एग्जांपल गूगल ड्राइव है। आपका जो फाइल आपने रखी है लोकल PC पे, लेकिन वो क्लाउड आप फाइल मूव करते हो ओवर द इंटरनेट टू अनदर सर्वर, अनदर प्लेस, जिसके अंदर आपको कोई मैनेज नहीं करना पड़ रहा, दैट इज अ क्लाउड इन माय ओपिनियन। लाइक और गूगल ड्राइव आप यूज करते जा रहे हो, ये भी आपके लाइक एक कॉमन एग्जांपल है। AWS क्लाउड है, अमेजोन की हम लोग शॉप्स नहीं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी सर्विस है AWS। इसमें मोर देन लाइक 250 सर्विसेज ऐसी हैं जो क्लाउड के अंदर अवेलेबल है, जो कंपनीज डे टू डे यूज कर रही है। करीम यूज कर रही है, बहुत सारी कंपनीज, अफिनिटी, ये सारे लाइक काफ़ी इन्वॉल्व है क्लाउड के अंदर, पाकिस्तान की कंपनीज भी इन्वॉल्व है। फिर अजूर जो कंपटीटर है AWS का, वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, उन्होंने एक क्लाउड बनाया है अजूर, जिसके अंदर AWS की कंपटीशन की सर्विसेज हैं। फिर एक है गूगल क्लाउड जो गूगल वालों ने बनाया है। ये 3 मेजर कंपनीज है जो, लेकिन फिर और भी है, लाइक आई थिंक ओरेकल वालों ने भी बनाया हुआ क्लाउड, अलीबाबा वालों का भी क्लाउड है। तो क्लाउड के अंदर क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आपकी प्रॉब्लम बिजनेस नीड्स के अंदर, जिसके अंदर आपको मिनिमम एफर्ट चाहिए होती है, वो आप एज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सो दैट्स द होल पिक्चर ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द क्लाउड। मूविंग ऑनवर्ड्स, अब सजील आप मुझे ये बताएं कि ये जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं मेजर, तो इनके अंदर जैसे दानियाल बता रहे थे बहुत सारे टूल्स हैं दैट वी कैन यूज। सो क्या कंपनीज टोटली इस पे रिलाय कर सकती हैं क्लाउड पे, और वो कंपनीज क्या करें जो कि अपना डाटा यानी कि ओवर द इंटरनेट थ्रो नहीं करना चाहती, उनका काफी सिक्योर डाटा है या डिफेंस रिलेटेड डाटा है, तो वो फिर कंपनीज क्या कर सकती हैं? अच्छा, यार ये जो बेसिकली क्लाउड बेस्ड जो चीज़ें हैं ना, इसमें बेनिफिट यही होता है कि आपके ऊपर से मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं ना वो हट जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो सबसे पहली चीज़ तो वही है जो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा दानियाल की बात को, कि आपके पास 3 मेजर चीज़ें हैं, उसमें डिफरेंट टूल स्टैक है और डिफरेंट टूल स्टैक की डिफरेंट पर्पज है। ठीक है, लेट्स से AWS की स्टोरेज अलग है, उसमें फिर AWS में कंप्यूट अलग है, तो मोस्ट है सारी चीजें सिमिलर ही, थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। तो यूज ऑब्वियसली इसी पर्पज से होती है कि आपकी जो कंप्यूट है, हाँ, आपकी जो कंप्यूट है वो आपकी बेसिकली सारी क्लाउड पे यूज हो रही होती है। आपकी जो सारी ऑटोमेशन है, जो सारी चीजें हो रही होती हैं, वो क्लाउड पे हो रही होती है। अच्छा, और अगर आपको तो आपने हार्डवेयर की क्लाउड पे टेंशन नहीं लेने की करना, जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली आपको हार्डवेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पे एज यू गो मॉडल पे चल रहे होते हो, आपकी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं। ठीक है, फेलियर के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, हम्म। चीजें वेल डिफाइंड होती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं।
आपको पता है कि अगर आपने एक सर्टेन चीज करनी है, आपने एक जॉब को ऑटोमेट करना है, आपको एक EC2 का फंक्शन लिखना है, तो आपको कौन सी सर्विस चाहिए होगी, कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अगर आपने एक परमिशन या एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है AWS पे, उसके लिए आपको कौन सी चीज आनी चाहिए, जैसे कि टेराफॉर्म हो गया, इस तरीके की चीजें होगी। ये वो सारी चीजें हैं जो कि वेल डिफाइंड है और सिमिलर है इन ऑल द क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव। और उन्होंने बड़ी नीश आइडेंटिफाई की हुई है कि हर एक पर्पस के लिए उन्होंने हर एक चीज डिफाइन की हुई है। लेट्स से उन्हें पता है कि कंप्यूट चाहिए तो कंप्यूट उन्होंने डिफाइन की हुई है, उन्हें पता है कि डेटा वेयर हाउस चाहिए उसके लिए उन्होंने डिफाइन चीज की हुई है, उन्हें पता है ETL चाहिए उन्होंने उसके लिए चीज डिफाइन की हुई है। ठीक है, उन्हें पता है स्टोरेज चाहिए उसके लिए उन्होंने चीज डिफाइन की हुई है, उन्हें पता है ऑटोमेशन चाहिए उसके लिए उन्होंने चीज डिफाइन की हुई है। तो उन्होंने हर एक चीज की नीश को डिफाइन करके एक टूल पर एक टेक स्टैक बिल्ड किया हुआ है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं, और ये सारे क्लाउड्स ने किया। अच्छा, अब बात आ जाती है कि अगर तो आपने क्लाउड पे डेटा नहीं रखना तो सोल्यूशन यही है, फिर आप वो एक्सपेंसिव सोल्यूशन होता है। एक्सपेंसिव सोल्यूशन इस तरीके से हो जाता है कि आप अपने सर्वर्स रखते हो, उस सर्वर्स के ऊपर आप अपनी स्टोरेज करते हो, और वो अगर आपने किसी से डेटा शेयर करना होता तो वो आपके सर्वर से कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी कंप्यूट हो गई वो भी फिर जाहिर सी बात है सर्वर डिपेंडेंट हो गई। आपकी जो कंप्यूट है वो सर्वर्स के ऊपर यूज हो रहा होगा, लेकिन बस ये है कि बॉटलनेक्स बन रही होंगी, क्योंकि जब आप क्लाउड पे होते हो तो वो बॉटलनेक्स नहीं बन रही होती उस तरीके से। उसके और अलावा काफी आपने फंक्शंस लिखने, ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स यूज करने, तो उसके लिए भी आपको सर्वर्स के ऊपर एक चीजें होस्ट करनी होंगी। तो मल्टीपल चीजें जो है वो एट ए टाइम आपके सर्वर्स पे चल रही होंगी। तो जितनी चीजें आपको चाहिए उतने सर्वर्स, उतनी कंप्यूट, उतनी चीजें आपको ऐड अप करनी पड़ेंगी अपने एक सोल्यूशन में, जो कि काफी एक्सपेंसिव होता जाता है और ऑलराइट। हार्ड टू मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप एक टाइम पे सर्वर में डिफरेंट चीजें मैनेज कर रहे होते हैं जिसके लिए आपको डिफरेंट एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती और हमें थोड़ा सा सजील, ये इसके अंदर दनियाल भी मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे मेरा एक और क्वेश्चन भी था बीच में कि क्या एक पूरी कंपनी कैन रिलाई ओनली ऑन द क्लाउड टूल्स टू रन देयर बिजनेस? क्या ऐसा भी होता है या नहीं, ऐसा नहीं होता? डिफरेंट तरीके से उनको कुछ पार्ट क्लाउड पे करना पड़ता है, कुछ उनको लोकली करना पड़ता है। है। या सो इसमें थोड़ा सा जो चीज आ जाती है ना, वो आ जाती है कि आपका सोल्यूशन किस तरीके का, आपका डेटा वेयर हाउस किस तरीके का, ये आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो किस किस बेस के ऊपर होता है। मोस्टली जो चीजें हैं वो क्लाउड में कवर हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो चीजें चाहिए होती है ना, लेट्स से ETL टूल्स हो गए, तो ETL टूल्स क्लाउड्स के डिफरेंट होते हैं, आपको आसानी के लिए कुछ और चाहिए होते हैं, तो इन चीजों में मोस्टली डिफरेंस आता है। लेकिन मोर और लेस जो बाकी सारी चीजें होती हैं आपके पास, जो क्लाउड में भी सर्विसेज हैं, दीज आर मोर देन एनफ टू डू एवरीथिंग। ओके जी, दनियाल भाई, तीनों क्वेश्चंस समय को मैं आप आंसर करना चाहें तो। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि वैरायटी है बहुत ज़्यादा क्लाउड में ना, तो एक EC2 इंस्टेंस होता है AWS क्लाउड का, लाइक वो सिंपल एक VM होती है हमारे पास, एक कंप्यूटर होता है, वो जिस तरह डिजिटल ओशन हो गया या हमारे पास एक कंप्यूटर हो गया वर्चुअल, वो होता है। उसकी जनरल टाइप जो है वो 8 है, उस 8 के अंदर 19 सब टाइप्स हैं, और उस 19 सब टाइप्स के अंदर फिर 19 टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेरे एक टास्क की मशीन लर्निंग है, उससे मुझे हाई कंप्यूट चाहिए या GPU एक्सेलरेटेड मुझे ना मशीन चाहिए। आप GPU एक्सेलरेटेड मशीन चूज करें, फिर उसमें देखें वो किस तरह के GPUs हैं, वो लाइक 19 टाइप्स होती हैं, C5 C4 कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, एक चूज करें। फिर उसके अंदर आप सेलेक्ट करें मुझे कितनी कोर वाली चाहिए, लाइक 64 कोर्स मैक्स है, 128 कोर्स भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लाइक आई हैवंट सीन लाइक 64 देखा है। फिर 256 GB रैम वाली मैक्स है उसके अंदर, फिर वो बताता है कि बैंडविड्थ कितनी चाहिए, IO नेटवर्क की मतलब कितनी होगी, स्टोरेज कितनी चाहिए उसके अंदर। सो इतनी वैरायटी अगर आपको लाइक प्रोवाइड की जा रही है क्लाउड के अंदर, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको लाइक एक ही सर्वर परचेज करना है और उसको ही आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सेकेंडली, जिस तरह वो कह रहे थे ETL की बात कर रहे थे, अब अजूर का एक बहुत फेमस टूल है अजूर डेटा फैक्ट्री, लाइक उसमें आपके पास पूरी ETL की विजुअल पाइपलाइन बनती है, लाइक यू डोंट इवन हैव टू कोड, अनलेस आपको कोई कस्टम लॉजिक चाहिए उस क्वेरी के अंदर थोड़ा बहुत मैनेज एडिट करने के लिए, अदरवाइज पूरा डेटा फ्लो बनता है आपका, लाइक इंटीग्रेशन उसकी हैं। तो ये है। फिर असल जो चीज़ है ना असलान भाई, सुजीत, जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो गवर्नेंस साइड की है, लाइक मॉनिटरिंग। क्लाउड का एक बहुत बड़ा
हम लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं क्लाउड की, लाइक एक थोड़ा सा उसका भी है कि मुझे याद है कि एक और ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाउड पे शिफ्ट किया, तो वो हमारे जो डेवलपर्स थे वो क्यूरी रन करने से डरते थे कि यार पर क्यूरी कॉस्ट आती है। लाइक स्नोफ्लेक का 1 टेराबाइट का डाटा स्कैन करने पे आपको $5 पड़ते हैं। स्नोफ्लेक का नहीं, सॉरी, बिग क्यूरी का। अगर एक क्यूरी रन की, सिलेक्ट किया, ज्वाइन किया, अगर उसने 1 टेराबाइट डेटा स्कैन किया तो $5 पड़ गए आपको। और इवन के पाकिस्तान में अगर आप कर लें तो लाइक इट इज अराउंड 1400 ₹1500। तो ये एक डिलेमा है क्लाउड का। सेकेंडली ये है कि थोड़ा सा आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज उस सेंस में होना पड़ता है, लाइक क्यूरी एग्जीक्यूट और ये यूटिलाइजेशन रेट क्या है, क्या फालतू में पैसा जा रहा है मेरा कि नहीं जा रहा है, क्या वाकई इसकी कोई चीज़ वैल्यू, तो आप अकाउंटेबिलिटी की तरफ फिर आना शुरू हो जाते हैं। लोकल का क्या, आप कस्टम क्यूरीज रन करते रहो, वो आपका अपना प्रोसेस, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, सर्वर तो आपने एक दफ़ा ले लिया, थोड़ा सा ये मार्जिन उसमें नहीं है क्लाउड में आपको। तो ये एक थोड़ा सा इसका नेगेटिव साइड भी है कि जब एक बंदा फ्रेश चाहता है क्लाउड के ऊपर तो वो थोड़ा सा हेसिटेंट होता है, केयरफुल होना पड़ता है आपको, और आपको इस तरह के एक्सेस। अच्छा, एक क्लाउड में एक बहुत मजे की चीज़ मैंने देखी है, बाय डिफॉल्ट AWS में तो एक्सेस होता है नॉट अलाउ, किसी को अलाउ नहीं है। वो स्लोली आप जब एक्सेस दे रहे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो सॉर्ट ऑफ ACL खुल रहा होता है, उसमें थोड़ा सा आपको इजीनेस मिल जाती है कि यार आपको ये आइडेंटिफायर नहीं करना पड़ता है, अप डाउन बॉटम अप अप्रोच का इख्तियार करते हैं आप उसके अंदर। सो दैट इज अ गुड पॉइंट। अदरवाइज आजकल लाइक हर कोई क्लाउड पे जा रहा है, बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन थोड़े से ड्रॉबैक्स तो नहीं कह सकता, लेकिन केयरफुलनेस थोड़ी सी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक जो बैंक्स हैं और जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिलेटेड, वो उनके लिए तो ये चीज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन है। अब बैंक का जो सारा डेटा है ना, बेसिकली वो उनका ट्रांजैक्शंस पे चलता है। अब ट्रांजैक्शंस के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन अब स्केलेबिलिटी की जहाँ पर बात आती है, उनके पास इंटरनल जिस तरह टेरा डेटा के आजकल टूल्स यूज़ हो रहे हैं बैंकों के अंदर, काफ़ी सारे उनके क्लाइंट्स ऐसे हैं जो टेरा डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक एनालिटिकल सोल्यूशन है। मैंने सुना था एक बैंक है जो क्लाउड यूज़ कर रहा है, लेकिन वो मेजरली फॉर नॉन PII डेटा प्रोसेसिंग, आई थिंक इट वाज JP Morgan, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन बैंक यूज़ कर रहे हैं नॉन PII इंफॉर्मेशन के लिए, वो IBM के साथ है। ऑलराइट, ऑलराइट। सो मूविंग ऑनवर्ड, जब हम बात कर रहे हैं क्लाउड के बारे में और डेटा के बारे में, सो डेटा सिक्योरिटी, is it your job to do? Is it a data engineer's job to do data security? ओके, सो बेसिकली 3-4 किस्म के पैराडाइम है इसके, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है, पहले यार मतलब कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, एक होती है नेटवर्क लेवल की, एक होती है आपकी डेटा ड्यूरिंग क्या कहते हैं इसको, डेटा इन ट्रांजिट और डेटा एट रेस्ट। 2 किस्म की होती है आपकी ना, कि अगर डेटा S3 में पड़ा हुआ तो डेटा एट रेस्ट होगा, उसके सिक्योरिटी से मुराद क्या, कि क्या कोई इसको सिस्टम को हैक कर सकता है कि नहीं, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स AWS क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अगर AWS S3 सिक्योर है, ठीक है, अनलेस आप खुद ही गलती करके पासवर्ड शेयर कर देते हो या एक्सेस शेयर कर देते हो, वो एक अलग चीज़ है। ये पासवर्ड सिर्फ पासवर्ड लिख रख देते हो यार पाकिस्तान 1-2 कर दे तो एक डेटा एट रेस्ट होता है और एक डेटा इन ट्रांजिट होता है, या डेटा ड्यूरिंग ETL प्रोसेस आपका डेटा नेटवर्क से मूव करता है। इसकी सिक्योरिटी के मैकेनिज्म है कुछ जो AWS आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। कुछ कीज होती हैं आपको प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा अगर इन ट्रांजिट है तो वो किस की बेस पे उसकी हैशिंग होगी डेटा की, और वो किस तरह वो की जब देंगे तभी डेटा आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में मिलेगा ड्यूरिंग मूवमेंट। और एक डेटा एट रेस्ट होता है, डेटा एट रेस्ट से मुराद ये है कि डेटा आप S3 में पड़ा हुआ है तो वो किस फॉर्म में है, इनक्रिप्टेड है कि नहीं है, अगर वो इनक्रिप्टेड है तो उसकी की किसके पास है। फिर एक होता है एक्सेस लेवल, कि किस को ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस है, क्या है जो एक्सेस है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, क्या डेवलपर लेवल पे है, क्या वो मैनेजर लेवल पे है। तो एक एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी का ये। तो डेटा इंजीनियरिंग का जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सिक्योरिटी को उसको पता होना चाहिए, पता होना लाजमी है। लाइक अटैक, साइबर सिक्योरिटी में अटैक वेक्टर्स होते हैं ना, लाइक डिफरेंट वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो क्लाउड आपको आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है ये वेक्टर, लाइक उनके साथ ISO सर्टिफाइड, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और वो चीज़ कंप्लीट होती है। और लेकिन पता होना व्हाट चाहिए। इफ यू आर नॉट ऑन द क्लाउड, आपके पास डेटा है, तो इज इट लाइक योर रिस्पांसिबिलिटी टू सिक्योर द डेटा?
kind of makes me to be responsible for the data. Like अब देखिए मैं आइडियल प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं अपने पीसी के ऊपर ना डेटा रीड करना स्टार्ट कर दूँ या प्रोसेस जो है वो मैं जो मुझे प्रॉपर वीएम्स दी गई हैं उसके ऊपर करूँ। या फिर एक और मसला भी है नरसलान के डेटा लीक हो जाना। कुछ कंपनीज का ऐसा होता है लाइक एक स्लाइड की कोई रन की एक्सपोर्ट एससीएसवी किया अपने पीसी पे कर गया और लाइक डेटा लीक आउट कर दिया। तो इसके अगेंस्ट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैकेनिज्म आजकल आए हुए हैं। तो पार्ट ऑफ देखिए ये एथिकल एस्पेक्ट भी है और सिक्योरिटी करनी चाहिए। सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन डेटा इंजीनियर्स के स्किल सेट में आता है कि फॉर एग्जाम्पल देखिए ना जब मैं स्पार्क का कोड लिख रहा हूँ अब मैं स्क्रिप्ट के अंदर ही कोड लिख दूँ S3 अपनी AWS S3 को एक्सेस करने का। सो दैट डजंट मेक सेंस। सो दैट आपको ENV प्रॉपर बनानी पड़ती है, एक डेटा वॉल्ट बनाना पड़ता है जिसमें आपको की रखनी पड़ती है। तो ये इस सॉर्ट ऑफ होता है। लेकिन मेजोरिटी जो 80% टास्क होता है वो साइबर सिक्योरिटी की टीम आपकी मैनेज कर रही होती है नेटवर्क लेवल की ऊपर। राइट। जो छोटी मोटी चीजें हैं ना लाइक पासवर्ड आपने पाइथन की फाइल में रख दिया या किसी को बता दिया या स्क्रीन शेयरिंग के अंदर पासवर्ड के नोटपैड में सेव किए होते हैं लोगों ने, ये जीमेल कर देते हैं पासवर्ड, ये नहीं करना चाहिए। लाइक ये आपको किस चीज से परहेज करना है? या इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको अगर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में ले जाए तो जब आप एक डेटा इंजीनियर जो होता है ना, अब उसका काम मोस्टली ये होता है कि वो सोर्सेज से कनेक्ट करता है। अब सोर्सेज से कनेक्ट करके जब वो डेटा लेकर आ रहा है तो उसको सोर्स से कनेक्ट करने के क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं। अब एक डेटा इंजीनियर का काम जब वो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेकर आ रहा है तो उसके पास मल्टीपल सोर्सेज के क्रेडेंशियल्स होते हैं। ठीक है, अब यूजुअली इनको शेयर करने के तरीके होते हैं। अब लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लास्ट पास यूज कर सकती है टू शेयर क्रेडेंशियल्स। अब वो इसीलिए करती है कि वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और उधर सेव रहते हैं। जब भी आपने यूज करना है आप उधर जाके लॉग इन करो और उसको उधर से क्रेडेंशियल्स को एक्सेस करो। उसके अलावा आदती है स्क्रिप्ट्स में जब आप पासवर्ड यूज कर रहे होते हैं लेट्स से टू डंप डेटा इनटू S3 बकेट या टू कनेक्ट टू डिफरेंट सोर्सेज एज वेल, तो उसमें आप डेटा को मास्क करो। जो आपके जो पासवर्ड्स हैं उनको आप मास्क करो ताकि वो नजर ना आए। ये इसलिए होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके पासवर्ड शेयर ना हो। ठीक है, उसके अलावा जब आप लेट्स से ओवर द क्लाउड कनेक्ट करो यूजिंग दोज क्रेडेंशियल्स तो आप अपने पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करो। तो इसमें इंक्रिप्शन आ जाती है, इसमें पासवर्ड और डेटा की मास्किंग आ जाती है। ये काम डेटा इंजीनियरिंग की सिक्योरिटी के अंदर आता है। उसके अलावा जो आ जाती है चीज़ वो आ जाती है एक्सेस कंट्रोल मेरे ख्याल से, जो कि ये है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा एक सर्टन एक्सेसेस में डिवाइडेड होना चाहिए। लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में HR का डेटा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का डेटा है। तो एम्प्लॉइज के पास परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो HR का डेटा एक्सेस कर सके। तो ये जो डेटा एक्सेस के जो कंट्रोल्स होते हैं ये यूजुअली DBAs के अंदर आते हैं। ये जो डेटा एक्सेस के कंट्रोल्स हो गए, डेटा इंक्रिप्शन हो गई, डेटा मास्किंग हो गई, पासवर्ड मास्किंग हो गई, ये वो सारी चीजें होती हैं जिसका ख्याल करना पड़ता है डेटा इंजीनियर को ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे और लीक ना। राइट। So ओके, सो जो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है वो बड़ा मजे का है कि आपको डेटा इंजीनियरिंग के अंदर अपनी जॉब में, डे टू डे जॉब में सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा बुरी कौन सी लगती है कि ये आ गई है तो बस पता नहीं यार ये क्यों आ गई है? ये आप आंसर कर लो। मैं इसको थोड़ा सा टेकअप कर लेता हूँ पहले। बेसिकली मेरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो होता है नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना। लेट्स से आपकी कंपनी जो है वो एक नया POC करना चाहती है एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर। वही बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा काम होता है जिसमें आप एक्सप्लोर करते हो, रिसर्च करते हो, उसको डिप्लॉय करते हो। तो ये वो सारी चीजें होती हैं। लेट्स से आप एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल डिसाइड कर रहे हो। अब आपके पास इतने मार्केट में इतने ढेर सारे ऑर्केस्ट्रेशन टूल है एंड इट्स नॉट इजी टू डिसाइड। आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देख के और मेजर चीजें देख के नहीं कर सकते जब तक आप POC नहीं करते। आप प्रीफेक्ट हो गया, डेटा यार्ड हो गया, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, और एयरफ्लो हो गया। अब जब आप POC करते हो तो इन चीजों के POC करने में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज रहती है। जो काम मुश्किल लगता है वो यही लगता है कि आपको जब डेटा क्लीन करना पड़े, बहुत ज़्यादा डेटा
बहुत ह्यूज डेटा है, उसको ट्रबल शूट करना पड़े, बहुत ढेर सारे ड्राइंग आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको ट्रबल शूट करने में बहुत हासिल होती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा आपको ब्रेन अपना एक्टिव रखना पड़ता है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी वो करती हैं। सही। जी दानियल भाई। मेरा तो जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना मुझे, लाइक मैं तो अभी डेटा एंड सॉल्यूशंस इंजीनियर हूँ ना, तो सॉल्यूशंस इंजीनियर का लाइक 50-60% जॉब कस्टमर के साथ होता है, कस्टमर के एग्जीक्यूटिव से बात करना, ठीक है। अब इशू ये होता है कि मुझे सबसे लाइक जो टफ लगता है ना, वो नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट लगता है। और कस्टमर अगर आर्गू कर रहा हो, नहीं 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 ये वो हमारा पिछला से चल रहा था, ये दैट फ्रस्ट्रेट्स मी लॉट, लाइक आई एम गिविंग यू अ होली ग्रेल और तुम उधर कर रहे हो, तो वो बहुत मुश्किल होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इन टर्म्स ऑफ डेटा, तो अक्सर ये होता है कि हमारा डेटा आर्काइव होता है लाइक 3 मंथ्स का ना, तो वो करंट डेटा को उठा के प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर करना और एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करना, व्हाट वाज मिसिंग, व्हाट वाज बैकफिल्ड, ये वो रिपोर्ट तैयार करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और जो अच्छा लगता है, अच्छा ये लगता है ना कि अरसलान भाई के कोई न्यू डेटा सोर्स ऐड हो गया, अब उसमें से कोई वैल्यू निकालने वाला टास्क, लाइक आई हैव टू एक्सप्लोर ये कॉलम है, ये कहाँ पे है, ये और जो सबसे अच्छा पॉइंट मजा आता है कि लाइक आई नो अबाउट टेबल, और मुझसे कोई ग्रुप में पूछ ले या वैसे पूछ ले कि लाइक यार ये क्वेश्चन कस्टमर का है, लाइक मुझे कस्टमर का क्वेश्चन आया था, लाइक उनके ट्रक का या व्हीकल का ना थ्रॉटलिंग पे ड्राइवर ने कितना प्रेशर डाला, लाइक ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अब फिजिकली मैंने सोचा लाइक लॉट ऑफ सेंसर इज इन्वॉल्व, लाइक मुझे एग्जैक्टली पता था कि यार ये कहाँ पे होगा, कैसे कैलकुलेट, लाइक मैंने क्विकली स्पिन अप किया ये स्नोफ्लेक का वेयर हाउस कॉमन वाला, और एक क्यूरी लिखी है और एवरेज लेके लाइक भेज दिया। तो ये बहुत फन पार्ट होता है, लाइक आपको अगर डोमेन के साथ डेटा के साथ अप्रूव्ड हो ना, ये बहुत सेटिस्फैक्शन पार्ट होता है, लाइक आई नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि क्वेश्चन को आप डेटा के थ्रू आंसर कर दिया, सो दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आगे चलते हैं। एक जो एक इसके बाद क्वेश्चन, माय पर्सनल फेवरेट एक्चुअली, एनी गुड थिंग रिगार्डिंग द ऑफिस कल्चर दैट यू वांट टू शेयर, कोई अच्छा वाकया या कोई फनी वाकया इफ यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर ऑफिस। सजील भाई, लेट मी टेक दिस वन। मेरे कोलीग थे और डेवऑप्स में काम करते थे, तो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो कॉन्स्टेंटली कह रहे कि लाइक सर्वर की हेल्थ नहीं ठीक, HDFS की हेल्थ नहीं ठीक, और मैं कहूँ ठीक है, करते 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 वो रिपोर्ट भेजी थी उसने, CEO तक एस्केलेट हुई गई है, CEO मेरे पास है, ईमेल है यार व्हाई द सर्वर हेल्थ इज नॉट गुड। मैं कहूँ सर्वर की हेल्थ ठीक है, मैं उसको दिखाया है, कॉन्स्टेंटली करते लाइक 3 आवर्स हमने स्पेंड किया, और पता चला कि भाई जिस सर्वर की कमांड लिख रहे हैं वो सर्वर स्टेजिंग सर्वर है, वो एक्सपायर हुआ 3 months से। तो लाइक इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट, बट इट वाज अ रियल फनी वन। सो प्रो टिप ये है कि आईपीस लाजमी देख लिया करो अभी। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। सो सजील, यार मैं मोस्टली यही बात करूंगा कि इंटरेस्टिंग क्या चीज़ होती है। हमारा ऑफिस का कल्चर बहुत हैपनिंग सा है, हम लोग विद इन टीम्स बहुत रीडली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बड़ा ग्रोइंग सा एनवायरनमेंट है। इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी टेक स्टैक बहुत वेरिएट करता है, तो आपकी अगर न्यूमरस क्लाइंट्स के लिए आपकी कंपनी काम कर रही है, तो आपके पास न्यूमरस टीम्स हैं जो कि डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है और डिफरेंट क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, तो आपकी इंटरेक्शन विद न्यूमरस क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज बढ़ जाती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको नए प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, डिफरेंसेस नज़र आते हैं, कंपैरिजंस नज़र आते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें जो कि बड़ी एक हैपनिंग सी लगती है मुझे इन माय करंट जॉब, जो कि बड़ी ज़रूरी भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, जो कि आपको नॉर्मली मिलती भी नहीं है। फन चीज़ें यही हैं, हम लोग बड़ी फन एक्टिविटीज रखते हैं, हमारा बड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है, यूजुअली आईटी में रिलैक्स एनवायरनमेंट ही होता है। गेमिंग करते हैं हम लोग, गेमिंग में चैलेंजेस होते हैं, चैलेंज करते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, सेशंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं ऑन फन साइड ऑफ थिंग्स। yeah, perks of being in a software house, so
काफी सारे सॉफ्टवेयर हाउस ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज। राइट। ओके, सो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लाइक लास्ट सेक्शन of this interview. That would be like data engineers will be looking into the memes, data engineering memes. So let me just share that with you guys, and hopefully you will like it. So we'll discuss it one by one. Let's see. Okay, so the first one is very the one that is between you and me, you guys and me, versus data engineers versus data scientists. We So don't get credit. We don't much credit. इसमें how डेटा would you इंजीनियर्स होने describe भी this नहीं चाहिए। pain? Like Sajil, we provide the relevant data, but वो थोड़ा सा like unicorn और colorful dashboard बना देते हैं और they are highlighted. हाँ बिल्कुल, ये वही फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड हो जाता है। Yeah, Yeah. ऑलराइट, ये बीच में डेटा एनालिस्ट गायब है। ये Interesting. उसी असलान थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, डेटा प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी टीम डिफरेंट होती है डेटा इंजीनियर हाँ डेटा साइंटिस्ट से। ये थोड़ा सा हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम करती है, लाइक दे डू नो लाइक विच डेटा लाइज वेयर, व्हाट आर देयर एक्सेस, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लाइक एक्सेस वगैरह हम लोग इन्हीं से ही डिमांड करते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हैं ना, तो इनको पता होता है कि कौन सा डेटा किस पर्पस के लिए कहाँ पे पड़ा हुआ है, कितना पुराना है, कौन सा आर्काइव में है, कौन सा बैकअप में जाना है। तो डेटा प्लेटफॉर्म इंजीनियर जो है वो यही काम करते हैं, दे हैव टू मेंटेन द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर डेटा। या सो नाइस। या सो डेटा प्लेटफॉर्म और वाले डेटा खाते हैं और डेटा साइंटिस्ट भी डेटा इंजीनियर का सर खाते हैं। हाँ, और हाँ, यहाँ लेकिन पे इसमें डेटा इंजीनियर्स की पेन शो हो रही है, सही वाली। हाँ, पेन नहीं शो हो रही, ये बता रहे हैं कि डेटा इंजीनियर सुपर हीरो होते हैं। दोनों तरफ जो नो डाउट। कोशिश करते हैं कि लाइक डेटा अवेलेबिलिटी शुड बी यू नो। बैकएंड में थोड़ा सा ये होता है कि मेंटेन। डेटा इंजीनियर जो होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक टेबल के अंदर या मटेरियलाइज व्यू एक होता है, उसके अंदर डेटा साइंटिस्ट को डेटा देते हैं कि वो वहां से इजीली रीड कर ले, जो रीड ऑप्टिमाइज्ड होता है। वेरी नाइस, चलो आगे चलते हैं। करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता ओके, है। आई थिंक ये पिक्चर इटसेल्फ बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट? या पाइपलाइन फट जाती है ना तो इसको कंसीडर किया, हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फट गई है पाइपलाइन, डेटा फट गया। बिल्कुल। Okay, So- much relatable. Okay, next, this one is like kind of my favorite. Business analyst, the purchase order table is empty. There is a bug. Data engineer, we haven't done any sales today. Check your filters. ये बिजनेस एनालिस्ट की जगह एक दफा कस्टमर के साथ हुआ था मेरे साथ, एग्जैक्टली यही हुआ। लाइक उनका ट्रिप नहीं गया उस दिन, और उस दिन उनका ना एक डेटा हमारा आता है लाइक ट्रिप एनालिसिस होता है, वो ट्रिप ही उन्होंने नहीं किया, तो एम्प्टी डेटा शो हो रहा है। लाइक मैं कहा क्यों एम्प्टी डेटा शो हो रहा है, वो देखा तो उनका ट्रिप ही नहीं गया। तो मैंने कहा यार इसलिए नल वैल्यू होगी। Nice. Okay, so this one. Yeah, we're familiar I with think everything. Yeah. not यार not a little disturbance, much of the disturbance, right? सही बात है, जब आपका स्लैक बचता है ना, आप कहते हो गया है, कांड हो गया है। Okay, next. Another my favorite one. Yeah. ये एयर फ्लो फटता है जब अक्सर ना, जब पीछे से डेटा सोर्स चेंज होता है या कस्टमर कुछ करता है ना, बस एयर फ्लो फटाफट think- आपको। और इसके अंदर मेरे ख्याल से ये भी होता है कि वो इतना उसको टेक्निकली देख रहे नहीं होते द अदर पार्टी, राइट? अंडरस्कोर की जगह स्पेस डाल देते हैं, लाइक व्हाट डज दिस मेक्स, यानी कहीं इससे क्या होता है। बिल्कुल। Okay, this one goes a little bit into technical side, लेकिन I think Daniel will explain it. टेक्निकल डेप्थ बेसिकली होती है ना कि कस्टमर ने शुरू में ऑर्गेनाइजेशन ने कहा यार हम लोग ये भी करेंगे, हम ये भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको मेंटेन करते हुए, और फिर वो जो पुराना इतना ज्यादा कचरा बन गया होता है उसको साफ करते करते उस पर भी टाइम करना है। इसको भी लाइक सपोज करें ना, एक बंदे ने कहा मैं डेटा लेक यूज करने, उसने कहा नहीं नहीं डेटा लेक अच्छा सस्ता है, लेकिन जरूरत उनकी स्नोफ्लेक की, डेटा वेयर हाउसिंग की, रियल टाइम एनालिटिक्स की थी।
अब एक टीम लगी हुई है जी डेवलप डेटा लेक को मेंटेन करने में, एक लगी हुई है यहाँ पे। अब डेटा लेक खत्म करते करते जब स्नोफ्लेक पे शिफ्ट होना है, तो वो टेक्निकल डेप्थ उसको पड़ गया, पैसे पड़ गए उसको उस चीज के, गलत डिसीजन के, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा उन्होंने। Right. हाँ। And the last one, how do we increase data reliability? More testing, data mesh, break pipelines on purpose. ये नेटफ्लिक्स का है, ये Comment. थोड़ा सा इंस्पायर्ड है नेटफ्लिक्स से। उनका है केओस मंकी, एक सॉर्ट ऑफ ना एक प्रोसेस है। वो जानबूझ के अपने पाइपलाइंस ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि रिकवरी टाइम कितना है उनका, ऑटोमेटिक रिकवरी किस तरह होती है। वो जानबूझ के केओस मंकी जाता है और बग्स क्रिएट करता है उनके पाइपलाइन के अंदर। ये नेटफ्लिक्स से इंस्पायर्ड है थोड़ा सा। दैट मेरा था। एक मेरे दिमाग में बड़ी फनी सी मीम आती है जो कि मुझे बड़ी क्लोजली रिलेट करती है डेटा इंजीनियरिंग से। उसमें एक बेसिकली एक लड़का है, एक लिफ्ट में खड़ा हुआ है एक लड़की के साथ, और वो फोन पे अपनी ऑफिस की टॉक्स कर रहा है और उसको बता रहा है कि द पाइपलाइन इज ब्रोकन। उससे डिस्कस कर रहा है कि अपने कॉलीग से। तो जब वो फोन काटता है तो लड़की उससे पूछती है कि आर यू अ प्लम्बर? वो कहता नहीं, आई एम अ डेटा इंजीनियर। डेटा प्लम्बर। प्लम्बिंग ही होती है ना यार, सही बात है। Nice. Okay, so this concludes our podcast today for today, and I thank you. Like, thanks to you guys. इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने अपना insight दिया towards data engineering. और Temur, we missed him because of some technical issue. He could not join us. But this overall, this went very well, and hopefully a lot of people will get a lot of help from this podcast. And I pray that they get good counseling from this. So आप लोगों का शुक्रिया दानियाल और सजील to join with me. And thank you very much to all the viewers. If you like this, please do subscribe. And thank you very much again. And Allah Hafiz.